Mr. CMD sir, on this historic webinar, which I should say. I think we should leave to Ramesh ji to start because I have nothing in front of him to explain his credentials and the way he has taken his life, the way he's taken his mission. He is a person personified par excellence, I should say. So I think we should share his experiences and try to, even if it is 1%, I think we've achieved everything. So over to you and then Ramesh Agarwal ji. हेलो हाँ चिंतन सर आवाज एक बार है ना बैकग्राउंड में किसी की आवाज आ रही है तो उसको आप म्यूट कर दीजिएगा ये पता नहीं तो मेरे में आवाज जो है सर वेलकम सर थैंक यू सर थैंक यू Agarwal sir, respected sir, welcome. This is. Thank you so much. Sir, I'll give you the. We will start. No, sir, we will start the official session within 2 to 3 minutes. We will. I'll give you the brief intro to all the audience about you, and then the director sir will give us the welcome address. Then we will move ahead with the session, sir, of your today's. So after a very long time, we are seeing you again. That is fortunate for all of us. nice to see you, sir. आज मेरी भी यादें थोड़ी ताजा हो गई. Right. Director sir, can we start the activity? Yes sir, Arvind, please start sir has joined, please start. Yeah Arvind, please start. Sir, yes sir, I'm just starting. Good noon to one and all present here. Today is a very special day for kids. That after 5.5 years, we are meeting again with the legend of logistics in India, and his name and face has no need of introduction to us. Respected Sri Ramesh Agarwal sir, Chairman Agarwal Packers and Movers Limited, to deliver a motivational and visionary talk related with his inspiring story, started from airman in Indian Air Force to now a chairman in Agarwal Packers and Movers Limited. Before giving his brief intro, I just wanted to tell everybody that I have not seen a kind-hearted and a very down-to-earth entrepreneur like him never before in my life. When I requested respected Ramesh Agarwal sir, that sir, we want your talk again in our college, like what we have done before 5.5 years back, but this time it will be virtually. And you will not believe the reply which I have received from his side. It was touches my heart, and he has said, "आपके लिए always." तो ये जो वर्ड जो मैंने सुना उनके मुंह से, तो it gives an immense pleasure, and I just got delighted that I am getting the output from one of the living legend of our country. Sir is a great person who is not only contributing through logistic and transport industry in national economic growth, but also ensuring the growth of logistic and transport industry with his contribution, dedication, innovation, and vision. Sir strongly believes that the wheels of economy are driven by
transporters and the drivers, but they are the real soldier of the economy. After his 6-year job in Indian Air Force as an airman, sir has stepped into a packing and moving industry, which we can say a logistic industry, to contribute to his belief, and now it has come up with the brand known as a flagship brand Agrawal Packers and Movers Limited, India's #1 household logistic organization. Under his guidance, the company has received 4 times Limca Book of Record holder title, and because of Sir vision for society and the driver quality life has motivated him to establish a driver Seva Kendra in Dadu, that is in Jaipur, Rajasthan. Sir is a rare kind of personality in this world. He is a visionary, he is a philanthropist, he is an innovative, patriotic, and a highly disciplined and a real social worker. I would like to welcome again respected Ramesh sir for delivering and for accepting a request for today's talk. And with this, I request our respected director sir to give away the welcome address. Over to you, sir. Hello. Yes, Yeah, sir. Arvind. Yes, Am I audible? yes, sir. Am I audible? Yeah. Good morning, everybody. Good morning to most respected our beloved Ramesh Agrawal sir. Sadar Pradam sir. Dear friends, today indeed it's one of the most proud day in the history of GITS of this current scenario of during this pandemic situation. Friends, we are very greatly honored with the graceful presence of Honorable Chairman of Agrawal Packers and Movers, our respected Ramesh Agrawal sir. Sir, we are extremely delighted and we are extremely thankful from the bottom of our heart. We express our very sincere gratitude, our hand-folded thanks to you for giving us your such a valuable and precious time. आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया. We all are aware, being a chairman of such a big group, how much you are occupied. But that is what I believe great leaders lead by example. The stalwarts, the great persons, they always inspire us by their actions, by their day-to-day in terms of example. So that is what one of the great person, Mr. Ramesh Agrawal sir. And when we talk about the contribution of Agrawal sir or the industry which sir has established, this I can say on behalf of 130 crore plus Indians, कि जब भी whenever there is any talk about of relocation या कभी कोई बात होती है कि साहब we have to shift from one location to other, so always सबसे पहले आता है that we will just we are Agrawal Packers Movers तो है ना, just they are just a phone call away. So I myself have been a witness, a very ideal testimony of the effectiveness, the preciseness with which the Agrawal Packers and Movers is working, and more or less the contribution of sir in the area of logistic, in the area of transportation, in the area of supply chain management. I was going through the history, the achievements, the contributions of sir. A company which started in 1987, within 33 years or probably within 20 years, it has become a household name for crores and crores of Indians. When it comes about transportation, when it comes about logistic, सबसे पहले अगर दिमाग में कोई नाम आता है तो वो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का आता है. वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो इफेक्टिवनेस we have received through this organization, through this company, under the visionary leadership of Agrawal sir, is unparalleled. Just a very small incident, I will take a minute of you, sir, to share my personal experience. When I was, before joining over here in Udaipur, I was in Kanpur. July 2017 में sir, I have shifted from Kanpur and I have taken the services of Agrawal Packers and Movers. तो मेरी उनसे जो बात, आपके वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से जो बात हुई कि भाई मैं 2 दिन बाद उदयपुर पहुँचूंगा, my flight will be reaching
अराउंड 2:20 दोपहर में, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर मेरा ट्रक भी करीब 12-1 बजे के आसपास या 2 बजे तक पहुंच जाए, सो इट विल बी वेरी इजी कि द मोमेंट आई विल बी लैंडिंग ट्रक भी है। ऑल्दो इट वाज वेरी टिपिकल टास्क इन टर्म्स ऑफ 1200 किलोमीटर की लॉजिस्टिक टू अरेंज, 1200 किलोमीटर की लॉजिस्टिक टू अरेंज करना, बट देन द टीम एश्योर्ड कि सर वी विल ट्राई आवर बेस्ट। सर आई वुड लाइक टू शेयर कि मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ, द मोमेंट आई वाज क्रॉसिंग द एयरपोर्ट फ्रॉम उदयपुर, आई सॉ कि जो मेरी अग्रवाल पैकर्स की जो ट्रक थी, इट वाज पैरेलल टू मी, सो इट वाज सच अ ह्यूज सरप्राइज एंड अ वेरी सेटिस्फाइंग मोमेंट कि the company has delivered within 48 hours. I requested कि मुझे consignment अगर उदयपुर में मिल जाए, so thank you sir for giving us those very efficient 100% what we can say just in time delivery का जो concept है, that the revolutionizing of transportation industry, that is what is the outcome of unparalleled leadership of yours. We are grateful, and this transformation from safeguarding our armed forces for being a honored soldier to shifting to starting a company, a transportation industry which is now present into more than 180 countries, having more than 1300-1400 service locations. Many firsts are there. I'm sure I'm not going to take much of the time, क्योंकि आज हम सभी लोग यहाँ पर हैं रमेश अग्रवाल सर की जर्नी को सुनने के लिए, और इससे अच्छा हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, वेयर अग्रवाल सर हिमसेल्फ इज देयर टू मोटिवेट अस, टू गाइड अस, टू इंस्पायर अस। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना प्रेशियस टाइम हम सभी लोगों को दिया गाइड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अरविंद। Thank you very much, Director Sir, Mr. Saab. Over to you, Arvind. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, now, sir, I request Agarwal sir to give away his special address of today, sir. Sir, over to you. Thank you very much. मैं पूरी गीतांजलि मैनेजमेंट का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप लोगों से इस वेबिनार के बहाने से मिलने का मौका मिला। मैं 5 या 6 साल, साढ़े 5 साल पहले जब आपके प्रेमिसेस में जब आया था इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा प्यार मिला था, मैं भूल नहीं सकता। आई हैव सीन कंप्लीट फैसिलिटीज, बिल्डिंग एंड जहां एक जो मेडिकल के जो स्टूडेंट थे, तो सबसे मिलने का मौका मिला था, देखा था कि कैसे उनका वर्किंग है। आई अप्रिशिएट, और उसके बाद फिर आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। सबको मेरा जय हिंद। मेरे यहाँ पर मैं एक चीज जो आपको जो जर्नी क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी जर्नी रहती है। कोई कुछ बेस बनाकर अपनी जर्नी करते हैं, कोई कुछ बेस बनाकर अपनी जर्नी करते हैं। तो मेरा एक हमेशा एक दिमाग में एक थॉट रहा, एक the life, you know, that is 10% how you make it and 90% how you take it. जब कोई भी आदमी अपना जिंदगी स्टार्ट करता है, उसका एक अपना एक सोच रहती है कि मैं कहां से कहां पहुंचूं, मगर वो सोच एक रखने से नहीं होती, वो एक आपके अपना एक शुरू में एक ब्लूप्रिंट बनाकर एक विजन बनाने से होती है। आई थिंक कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, हाँ अभी आ गया होगा। तो एक सोच बनती है। तो मैं मेरी एक अपनी जो सोच बनी, जो मेरा अपना एक रहा कि जो लाइफ होती है वो 10% हाउ यू मेक इट एंड 90% हाउ यू टेक इट। आप किसके घर में जन्म लोगे ये आपके हाथ में नहीं है, अमीर के लोगे या गरीब के लोगे। जब कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी एडमिशन होगी वो भी कई बार आपके हाथ में नहीं होती है। तो दिस होल जर्नी आई जस्ट मेक इट, आई जस्ट ओनली गिवन द नंबर्स द 10%, और उसके बाद जो 90% है वो आपके हाथ में है, हाउ टू टेक इट। तो मेरा भी एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। पिताजी की उस टाइम पर वार्षिक आय मैं रिकॉल करता हूं
तो शायद 24-25 हजार रुपए थी, उसी में हमारा परिवार का गुजारा होता था। और वहां से एक जर्नी शुरू की। मगर पिताजी ने उस जर्नी के अंदर अपनी एक ऐसी पोटली बांध के मेरे को दी कि बेटा ये लेके जाओ, इसमें सब कुछ है जो एक पिताजी अपने बच्चों को देता है, कि वसीयत के नाम पे जिसके पास पैसा होता है धन देता है, किसी के पास घर होता है घर देता है, किसी के पास फार्म हाउस होता है वो देता है। तो पिताजी के पास एक छोटी सी पोटली थी, कहे बेटा ये लेके जाओ। तो उसमें जब मैंने देखा, उसमें जब उन्होंने कहा कि कभी भी जब भी कोई आप सर्विस में जाओगे या व्यापार करोगे या कुछ भी काम करोगे तो भीड़ का हिस्सा बिल्कुल मत बनना, क्योंकि भीड़ के हिस्से की कोई पहचान बहुत कम होती है। और आप लीग से हटकर जो भी काम करे भीड़ का हिस्सा मत बनना और एक्सक्लूसिव आउट ऑफ बॉक्स सोच के काम करना। वो एक दिमाग में ऐसा घुसा दिया कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। और फिर मैं उस जर्नी को पढ़ाई की और कैसे किया वहां से न ले जाकर आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम एयरमैन। मैं भारतीय वायुसेना में 1979 में भर्ती होकर एज ए एयरमैन मैं चेन्नई चला गया, मद्रास। वहां एमटीआई के अंदर मैंने एमटीआई की। और मैं समझता हूँ कि कुछ हमारे को एक जैसे एडमिन है, एडमिन एक बार सबको म्यूट कर दे। सिंपल सर, तो एक बार देखिएगा ना कोई कौन डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है। सॉरी सर, सॉरी। ग्रुप को एडमिन होता है ना, सबको आई थिंक म्यूट कर सकता है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा म्यूट टू ऑल करके। और फिर मेरे को भी हो गया तो मैं खोल लूंगा मेरा म्यूट। तो उस तरह की 15 महीने की ट्रेनिंग थी। वो ट्रेनिंग मैंने सक्सेसफुली चेन्नई में की। और ट्रेनिंग के बाद एक चॉइस पोस्टिंग के लिए एक जो हमारे कमांडर थे, एक फॉर्म भरना पड़ता है कि आपको अब इस ट्रेनिंग के बाद कहां जाना है। तो चॉइस पोस्टिंग जब होती है उसमें लिखना पड़ता है कि यू प्रेफर 2-3 स्टेशन। तो कोई आदमी अपने घर के पास लिखता है, कोई अपने किसी रिलेटिव के घर के पास लिखता है। तो मेरा घर हरियाणा में हिसार में था, दिल्ली के पास। वहां हमारी 2-3 यूनिट है, एक सिरसा में है, एक गुड़गांव में है, एक दिल्ली में है। मगर मैंने तीनों जगह जो भरने का था फॉर्म उस पर लिखा कि जे&के। हमारे कमांडर ने पूछा कि भी आपका घर, आप रहने वाले दिल्ली हरियाणा के हो, तो आपने जे&के क्यों लिखा? और वो भी तीनों जे&के। उससे क्या ताल्लुक है आपका? मैंने कहा सर मैं जो फौज में भर्ती हुआ हूं, एयरफोर्स में भर्ती हुआ हूं, वो मेरी एक इच्छा एक कुछ सीखने की, कुछ देखने की थी। वो जब तक मैं फौज में नहीं हूंगा वो देख नहीं सकता, क्योंकि मेरे को बॉर्डर बारीकी से देखना था। हमारा देश का बॉर्डर कैसा है। यदि मैं कोई किसी दूसरी सर्विस करता, कोई बैंक की सर्विस करता या किसी और प्राइवेट कंपनी में कोई सर्विस करता, तो शायद मेरी जिंदगी भर मेरे को बॉर्डर देखने का मौका ना मिलता। तो मेरे को वो देखना है, तो मैं केवल जे&के के पास जाकर ही दे सकता हूं। तो बड़ा खुश हुआ वो कमांडर, और मेरी चॉइस पोस्टिंग को देखकर ही सेड ओके आई एम रिकमेंडिंग यू इन जे&के बॉर्डर। और उसी तरह मैं 1980 के अंदर भारतीय वायुसेना में भर्ती होकर मेरी पहली पोस्टिंग श्रीनगर हुई और मैं श्रीनगर आ गया। दिसंबर में मेरा आना हुआ था। 15 दिसंबर में श्रीनगर पहुंचा। माइनस कोई 9 या 10 डिग्री टेम्परेचर था। 12-12 फीट बर्फ गिरी हुई थी। और 2 दिन रास्ते में पटनी टॉप, बनिहाल, काजीकुंड वहां हाल्ट करते करते मेरा वहां पहुंचना हुआ। 16 दिसंबर से मैंने मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। जब मेरा ऑफिस ज्वाइन किया, पहली बार मैं पोस्टिंग होकर आया था, तो लोगों ने इंट्रोडक्शन कराया कि ये वो है हमारे यंग एयरमैन, ऐसा वैसा करके। 17 तारीख हो गई, 18 तारीख हो गई और मेरे को कुछ काम नहीं मिला। मैंने जो मेरे सीनियर थे मैंने पूछा सर क्या हुआ, मेरे को कुछ काम तो दो। वो बोला कि यार जिंदगी पड़ी है, साइन किए 20 साल के, कर लेना, कौन सी अभी तुम बूढ़े होते जा रहे हो, बर्फ पड़ी है, कौन सी फ्लाइंग हो रही है यहाँ पर। तो मेरा एक ये इच्छा थी कि मैं जब भी कोई चीज नई जगह पर जाऊं और कुछ भी करूं, और एक भीड़ का हिस्सा मेरा बनने का दिमाग में वो था कि भीड़ का हिस्सा ना बनूं, या मेरी कैसे पहचान बनाऊं इन पुराने लोगों के बीच में। जो मेरे सेक्शन में 60-70 लोग थे, पूरी यूनिट हमारी करीबन
2-2,500 लोगों की थी, मगर मेरी पार्टिकुलर सेक्शन के अंदर 60-70 लोग थे। अब मैं अपने आप में एक तरह से 15 दिन निकाल दिए, और हमारे वहां पर उस टाइम पर जब मंथ एंड के टाइम पर सैलरी डे होता था, तनख्वाह मिलती थी, उस टाइम पर कैश मिला करती थी। 31 दिसंबर जो ही हुई, सैलरी डे आ गया, मेरा नंबर भी आ गया। एक अफसर नाम बुलाता है और एक रजिस्टर पे साइन करते हैं, वो तनख्वाह देता है और साइन करो और आगे बढ़ते जाओ। मेरा भी नाम पुकारा, रमेश कुमार। उस टाइम मेरा नाम रमेश कुमार था, अग्रवाल पीछे नहीं लगता था। मैं गया, फ्लाइंग ऑफिसर जेके कोल थे, मेरी याद है, उन्होंने उस टाइम पर मेरे 8,000 रुपए हाथ में थमाए, मतलब मेरा दस्तखत करो यहाँ पर। मैंने 8,000 रुपए गिनने के बाद 4,000 रुपए जेब में डाल दिए और 4,000 रुपए मैंने कोल साहब को वापस कर दिए। देन ही सेड, ये क्या है? मैंने कहा सर मैं 16 तारीख से यहां ज्वाइन किया हूं और 16 से 31 तक मैंने 1 रुपए का काम नहीं किया। आई नॉट डिटेल्ड एनीथिंग। मैं सेक्शन को बोलता रहा कि दे सेड नो, इट इज टू अर्ली, काम कर लेना, जिंदगी पड़ी है, जिस दिन आप मेरे को काम दोगे मैं उस दिन तनख्वाह देना शुरू कर दूंगा, और जब तक काम नहीं दोगे मैं नहीं लेने वाला। बोला ये क्या हुआ? बोला जी मैंने तो ये सीखा है हमारे घर से। Then he said, do you know it is offense? मतलब जी I know very well it is offense as per defense, but इस offense को मैं झेल लूंगा, पर मेरी अंतरात्मा में जो वो offense करेगी उसको मैं झेल नहीं पाऊंगा। आखिर में कोल साहब ने कहा कि जेंटलमैन आप आर्गू कर रहे हो, यू विल बी चार्ज सीटेड। मतलब जी कैसे भी हो, आई डू एग्री। मैंने 4,000 वापिस कर दिए, आई हैव बीन चार्ज सीटेड, और मेरी 7 दिन के अंदर मेरे विंग कमांडर एसके निगम, उस टाइम के सेक्शन कमांडर सीओ होते थे, वहां पर मेरी चार्जशीट हुई, वहां मेरे को पेश कर दिया। विंग कमांडर ने पहले हमारे जो ऑफिसर थे मिस्टर कोल की बात सुनी, उसने कहा कि यस व्हाई डिड यू नॉट एक्सेप्ट द योर सैलरी, इट हैज बीन यू नो, भारत सरकार देती है तो सबको लेना पड़ता है। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल सैलरी लूंगा, अलबत्ता मैं काम करूंगा था। मैंने एक दिन का भी काम नहीं किया, 16 तारीख से मैं यहाँ आया हूं, तो मैं तो जब तक मेरे को काम नहीं दोगे मैं नहीं लूंगा। आज काम दे दो मैं आज से शुरू कर दूंगा। कोल साहब ने, जो मेरे दूसरे मिस्टर जो कमांडर एसके निगम साहब ने कोल साहब को बोला, ऑफिसर्स प्लीज यू कैरी ऑन, आप जाओ, मैं अकेले में से बात करूंगा। और उस विंग कमांडर एसके निगम, जो मेरा प्रेजेंट सीईओ था उस टाइम का, तत्कालीन सीईओ था, मेरे एकदम हक करके बोला, बेटा ऐसे आदमी की मेरे को बहुत दिनों से तलाश थी, तुम मेरे को मिल गए, अब मैं आपको कल से मेरा स्टाफ ऑफिसर रखूंगा। जो स्टाफ ऑफिसर बनने के लिए किसी सीईओ का 15 साल लगते हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस वाले को दे टेक दिस, गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ए स्टाफ ऑफिसर, मेरे को 15 दिन के अंदर मिल गई। आप सोच के दे सकते हो कि 15 दिन और 15 साल क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज सीखी थी कि जो भी काम करो भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ से हटके करो, तो आपको अपनी जो रास्ते हैं वो अलग से बनेंगे, और जब अलग से बनेंगे तो अलग से एंजॉय होगा, और अलग से आपको सीखने को मिलेगा, और अलग से आपका अचीवमेंट होगा। तो मैंने वो 15 दिन के अंदर एक नया अचीवमेंट करके, जो पोटली पिताजी ने दी थी कि भी भीड़ का हिस्सा मत बनो, उसका मेरे को रंग आने लग गया। इस तरह से मैं वहां पर स्टाफ ऑफिसर बन के काम करने लग गया। विंग कमांडर साहब बहुत प्यार करने लग गए, और इस तरह से होते होते जब मेरी 4 या 5 साल की जॉब हो गई थी, और मैंने पूरा बॉर्डर हर चीज बारीकी से देख लिया था, करगिल, थवाई, सिले, लद्दाख, अवंतीपुरा, द्रास, ये आजकल का जहां पर उग्रवादी जो कर रहे हैं, ये सारा एरिया मैंने खूब चपा चपा मेरी आंखों से देखा था मैंने। मेरा वहां भी मन भर गया था। तो कमांडर साहब को कहा कि साहब अब मैं बहुत कुछ कर लिया और बहुत कुछ सीख लिया, अब मैं चाहता हूं कि बाहर जाकर इसका मैं लाभ उठाऊं। देन ही सेड, रमेश बाहर जा सकते हो, सब कुछ है, मगर जब राइट टाइम होगा तो मैं आपको कहूंगा कि आप बाहर जा सकते हो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। मैं बोला भी सर कब होगा? बोला वो राइट टाइम आएगा तो मैं बतला दूंगा। इट वॉज ए ईयर ऑफ 1985। उसके बाद मैं फिर काम में लग गया, और एक बार की बात है
कि जब मैं इंडियन एयरफोर्स में था तो मेरा जो डिपार्टमेंट था फ्लाइंग कंट्रोल था। फ्लाइंग कंट्रोल के मतलब क्या होता है कि जब भी जहाज उड़ते हैं तो उसके हर लेवल का टेम्परेचर देखने को और उसके बाद फोरकास्टिंग करनी पड़ती है कि किस लेवल पे क्या टेम्परेचर होगा, क्या हवा का दबाव होगा, कितनी तेज स्पीड होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें, और फ्लाइंग कंट्रोल को जहाज को लैंड करना है तो किस डायरेक्शन में करना है, किस में नहीं करना, ये मेरी जिम्मेवारी थी। और ये सब कुछ उस जमाने में विजुअलाइज होता था, आंखों से देखकर करते थे। हमारे पास कोई मशीनें नहीं थी। पहली बार 85 में मशीन आई थी सैटेलाइट से ऑब्जर्वेशन करने की, इनसेट बी हुई कि हम अब एक्यूरेट फोरकास्टिंग करेंगे, क्योंकि जब आदमी अपनी आंखों से करता है या विजुअलाइज करता है, मैनुअल करता है, तो कहीं ना कहीं एरर होने का कुछ चांस हो जाते हैं। जब मशीन आई बड़ी खुशी हुई कि हम अब ये मशीन लगेगी और अब हमारी फोरकास्टिंग बिल्कुल एक्यूरेट होगी। एक ट्रक आया मशीन लेकर, और जो हमारा सेक्शन होता था उसके एक जैसे कार पार्किंग के सेट होते थे, इस तरह का सेट रखा हुआ था, उसके बाहर ही वो उतार कर चला गया। भारी भारी पेटी थी 100 किलो की। शाम का 5-6 बजे का समय था और मैं भी उस टाइम पर ऑफिस छोड़कर अपने रूम पे जा रहा था। बड़ी थ्योरी मशीन के हाथ आकर देखा मैंने, बट पेटियों में पैक थी। एक मन में उत्तेजना और मजा आएगा। इस इन सेट से पूरे साउथ, अपने पूरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा वर्ल्ड का नक्शा देखने को मिलेगा। कौन से क्लाउड्स कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, किस तरह के रेट होगा, कब टेम्परेचर इंप्रूव होगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और रूम में चला गया। जब रात को 2:30 बजे मेरे अपने कुछ रूम देखा बाहर बड़ी बर्फ गिर रही है। थी ध्यान में आया कि जो मशीनें बाहर थी उसके ऊपर भी बर्फ होगी। जब बर्फ ना तो बर्फ पीना शुरू करती है, टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होता है। और जब बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो लकड़ी की पेटियों में अंदर पानी, तो इसकी मशीनें, ये मशीनें खराब हो जाएगी। अब मन ये कर रहा है कि इसको 2-2.5 किलोमीटर जाकर पूरा बर्फीले तूफान के अंदर अपने ऑफिस में जाओ और उस पेटी को हटाओ, और वो 80 किलो की सोचता रहा 15-20 मिनट, मगर दिमाग काम नहीं कर रहा था, व्याकुल था। आखिर में मैंने मेरे बर्फ के जूते पहने, बर्फ का एंटीबर्फ और अपने कैप बलकावा और गोगल लगाकर मैं उस डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि रास्ता सारा बिल्कुल सफेद दिखता था, कुछ दिख ही नहीं रहा था रोड है या नहीं है। और मैं 1-1.25 घंटे में चलता चलता और मेरे सेक्शन में पहुंचा। सुबह 3:30 बजे करीबन का टाइम हो गया AM, और सारी बर्फ हटाई पेटियों से, और पेटियों को अपनी मेहनत करके अकेला, क्योंकि उस टाइम पर मेरी उम्र 23-24 साल की थी, मैं अपनी कोशिश करके उन पेटियों को 100% साइड के नीचे ले जाकर रख दिया। और फिर वापस आ गया। आते आते फिर 5:30-6 बज गए, और 7:30 बजे मेरे को फिर दोबारा ड्यूटी पे जाना था। आध घंटा रेस्ट किया, फिर इमीडिएटली दोबारा कपड़े पहने और ड्यूटी के लिए रवाना हो गया। सेक्शन में पहुंचा 7:30 बजे, तो वहां जो इन्वेंट्री लॉजिस्टिक ऑफिसर था वो मेरे से 10-15 मिनट पहले पहुंचा हुआ था, क्योंकि उसको भी मालूम था कि मशीन बाहर पड़ी है, बर्फ पड़ेगी, भीगी होगी, पर वो सोचा कि 15 मिनट पहले जाकर अंदर कर लूंगा, कोई देखेगा तो किसको मालूम होगा। मगर वो ऑलरेडी रखी हुई थी, बर्फ उतारी हुई थी ऊपर से। तो वो अपने आप ऐसा मुस्कुरा के कह रहा था, ये कौन आदमी आ गया, कैसे हो गया, कोई तो नहीं। यहाँ पर जब आपस में वो बात कर रहे थे, इतनी देर में हमारा कमांडर भी आ गया। कमांडर ने कहा, अरे वेरी गुड, यू हैव केप्ट इनसाइड। तो उस आदमी ने कहा कि साहब मैंने तो नहीं रखी, मगर ये तो मेरे आने से पहले किसी ने रख दी थी। तो उसने बोला ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने कहा कि सर 2-2:30 बजे जब मैं उठा लघु शंका के लिए, और मेरे को जब पेटी की याद आई तो मैं व्याकुल था, तो मैं सो नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कम से कम ये पेटी रख के आकर वापिस तो सो जाऊंगा, और मैं किसी तरह हिम्मत करके वहां पहुंचा और मैंने पेटी अंदर करी और मैं वापिस आया। वो बड़ा खुश हुआ, बोला यार तुम तो अलग तरह का आदमी है, तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है, तुम इंचार्ज नहीं हो, एंड देन स्टिल यू हैव डन that too minus temperature and the snowfall of 8 to 10 feet,
एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप 8-10 फीट के स्नोफॉल के अंदर आप पैदल जाओगे तो बहुत मुश्किल होता है वहां पर चलना। एक बार रास्ता बनता है तो यू कैन वॉक डाउन, अदरवाइज पहला जो आदमी जाएगा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वो, बट एनी हाउ मैं यंग था, इच्छा थी, और वो अपने रूम में ले जाकर मेरे को कहा कि जेंटलमैन सी मी आफ्टर लंच। मैं सोचा कि क्या गलती होगी भाई, क्यों ऐसा बुला लिया। तो एनी हाउ आई वेंट इज कैबिन। उसने फिर दोबारा खुशी होकर कहा कि यार तुम है ना मेरे को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मैं अब क्या कहूँ आपके बारे में। मतलब सर बोलिए। तो आपने 1 साल पहले पूछा था कि मैं अब एयरफोर्स छोड़ना चाहता हूँ, तो देन मैंने कहा था कि नहीं, टाइम आएगा तो बताऊंगा। अब आपका टाइम आ गया, आप छोड़ के जा सकते हो, एंड यू विल गेट सक्सीड, यू विल बी दैट सक्सेसफुल। तो मैंने पूछा सर ये आपने 1 साल पहले और 1 साल का इंतजार क्यों करने दिया, ऐसा क्या हो गया 1 साल के अंदर। उसने एक छोटी सी बात बताई। उसने कहा कि जब एक उदाहरण के रूप में कोई बिजनेसमैन है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और अपने घर चला जाता है, और उसको ध्यान में आता है कि मेरे ऑफिस की लाइट, बिजली, पंखे, एसी सब चलते हुए मैं छोड़कर आ गया, क्योंकि उस टाइम पर पावर नहीं थी, लाइट नहीं थी, और जैसे बंद थी तो उसने बंद करके बाहर चला और चला गया। घर में जाकर देखा तो लाइट आई हुई देखी, तो याद आया कि अरे मैं तो सब कुछ मेरा बंद करना भूल गया, स्विच ऑफ करना भूल गया। तो वो क्या करेगा? देन आई सेड वो वापिस आएगा, चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे रात का 11 बजे टाइम हो। मैंने सर से पूछा कि कमांडर साहब से, विंग कमांडर निगम साहब से, कि सर ये 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ, बदलाव दिखा आपने कि मेरे को 1 साल पहले भी आप छोड़ सकते थे। देन उसने एक उदाहरण दिया कि मान लो कोई एक बिजनेसमैन है, अपना ऑफिस बंद करके चला जाता है, और उसको घर में जाकर याद आता है कि क्योंकि उस टाइम पर लाइट, पावर, बिजली नहीं थी, और जब घर में गया तो उसको सब कुछ दिखाई दे गया, अरे लाइट जल रही है। देन ही गॉट, उसको याद आया कि मैं तो सब कुछ भूल कर आ गया। तो व्हाट डिड ही से, वो क्या करेगा? वो वापस आएगा, इवन चाहे 10-15 किलोमीटर क्यों ना हो, और वो बंद करके वापस जाएगा। उसकी जगह पर सपोज करो कोई एक एम्प्लॉय है, उसको याद आया कि अरे मैं बंद करना भूल गया, तो उसके दिमाग में दोनों चीज आएगी कि एक बंद तो करेगा, या जाओ एक करेगा कि यार 15 मिनट पहले जाकर बंद कर देना, कौन देख रहा है। तो जो गया वो मालिक, जो नहीं गया वो सर्वेंट, नौकर। तो आप अब गए थे तो मैं आपको एक ओनरशिप की कैटेगरी में काउंट करता हूं। नाउ यू हैव गॉट ए डिग्री ऑफ एमबीए मलकाना, एमबीए ओनरशिप, और जिसके पास एमबीए ओनरशिप हो जाती है उसको पूरा हक है एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी चलाने का। तो नाउ आई कैन रिकमेंड यू, यू विल बी सक्सीड। तो उस तरह से दोस्तों यहां पर मैं आप सब लोग एक डिग्री लेने के बाद, आपने एमबीए मार्केटिंग ले लिया होगा, एमबीए मेडिकल ले लिया होगा, एमबीए आपने एचआर ले लिया होगा, एमबीए सोनसो ले लिया होगा, मगर एमबीए मलकाना का कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती। वो आप जब यहाँ के बाद सर्विस करोगे 2, 4, 5 साल, 7 साल, उसके अंदर जाकर आपको, उसके दौरान आपको एक डिग्री और लेनी है, एमबीए मलकाना, एमबीए ओनरशिप। और जिस दिन आपके पास 2 साल में होगी, 5 साल में होगी, 7 साल में होगी, 14 साल में होगी, 30 साल में होगी, द डे यू गेट ए डिग्री योरसेल्फ, और फील करते हो कि ये डिग्री मेरे पास है, वो डिग्री के लिए कोई बाहर वाला नहीं बताएगा, अपनी आत्मा बताएगी। और उस दिन के बाद आप कहोगे कि लेट अस स्टार्ट माय बिजनेस, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे कि वो डिग्री आपको मिल गई। तो इस तरह से मैंने वहां पर आउट ऑफ बॉक्स करके, लीग से हटकर एक अपना काम किया और एक डिग्री ली, और डिग्री लेने के बाद मन बन गया अब एयरपोर्ट छोड़ना है। और दोस्तों एयरपोर्ट छोड़ दी, और वो दिन आ गया मार्च 1986 का, जब मैं एयरपोर्ट से विदा हो रहा था। विदा होने के बाद मैंने सोचा यहां भी एक ऐसी चीज छोड़कर जाऊं, मेरी नाम तक ही लोग याद रखे, मेरे काम याद रखे, और जाने के बाद ये एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर मेरे को बुलाए ना। विदाई पार्टी थी, काफी लोग मेरे कुलीग साथ में, कुछ लोग साथ वाले चाहते भी हैं आपको, कुछ लोग नहीं भी चाहते, दिल से कुछ प्यार करते हैं, कुछ नफरत भी करते हैं एक दो, क्योंकि यार बड़ा काम करता है ये तो कमांडर का चमचा है। तो उस तरह से भी कई लोग दुखी होते हैं। मैं 15 दिन में एसओ बन गया, लोग 15 साल में नहीं बने, वहां भी दुखी होते हैं।
बट एनी हाउ मेरा मन था कि मैं सबको खुश करके जाऊं, सबकी आंखें नम करके जाऊं। जब विदाई हुई तो एक पेपर लिया और मैं लिखा कि जो मेरी लाइफ सेविंग 30-40 हजार रुपए मेरे पास उस टाइम पर इकट्ठी हुई थी मेरे 5-7 साल के अंदर, अभी तो मेरा हार्ड अर्निंग कह सकता हूं कि माइनस में रहकर मैंने पैसा कमाया था, वो मैं लिख कर दिया कि दिस ऑल मनी इज टू बी गिवन टू बारबेडोस। और एक बिल्टी, एक बेल्ट, 1 रुपया, एक सूटकेस, एक टिकट और एक वर्दी मैं वहां से लेकर निकला। और जब मैंने वहां डिक्लेयर किया, जितने भी लोग मेरे साथ के थे वहां पर, मैंने कोई भी आज उस टाइम पर ऐसा नहीं था जिसकी आंखें नम नहीं थी। बड़े भाव के साथ में उन्होंने मेरी विदाई करी। उसने कहा कि रमेश यार तुमने मेरे को जीत लिया। इस तरह से मैं वहां से विदाई लेकर आया। और आने के बाद मेरा उस टाइम पर होम टाउन, गांव छोड़कर पिताजी हैदराबाद आ गए थे और मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गया। जब हैदराबाद पहुंचा, 15 दिन हो गए, महीने हो गया, तो उनको लग रहा था कि बेटा एयरपोर्ट छोड़कर आया है, कुछ पैसे तो होंगे। तो धीरे धीरे करके पता लगा कि इसके पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, न कोई बैंक में पैसा है। तो मैंने माताजी को बोला, पिताजी को बापूजी कहते थे हम, कि बापूजी मेरे पास बहुत पैसा है मगर अभी कैश में नहीं है, मैं इसको कैश करूंगा। बहुत कुछ सीखा एयरपोर्ट से, एंड इट इज कैशलेस मनी है ये। उनके समझ में नहीं आया कैशलेस मनी क्या होती है। एक दिन अचानक जो मेरा एक डिप्टी कमांडर मिस्टर गुप्ता जी थे, वो एयरफोर्स स्टेशन हैदराबाद ट्रांसफर होकर आ गए थे। वहाँ AFA है, एयरफोर्स एकेडमी, जो पायलट की पहली ट्रेनिंग होती है वहाँ एकेडमी में होती है, डुंडीगल हैदराबाद। क्योंकि उनकी वाइफ और वो जब मेरे को विदा कर रहे थे तो उनको बड़ा दिल में प्यार था कि यार एक लड़का, बड़ा अच्छा लड़का था, हमारे साथ एयरफोर्स में रहा और जो भी उसके पास था लाइफ सेविंग, वो बारबेडो को देकर गया। और बुरी बुरी मतलब मेरी प्रशंसा अपने दिल में कर रहे थे। जब उन्होंने हैदराबाद पहुंचे तो किसी तरह मेरे पास कोई नंबर भी नहीं था, PP नंबर था, किस तरह कैसे ढूंढा आई डोंट नो। ही मेड ए कॉल वन नाइस डे और कहा कि रमेश पहचानते हो मेरे को? बोला सर मैं तो नहीं पहचानता। सुभाष? बोला जी नहीं पहचानता। श्रीनगर कहते ही बोला अरे सर आप तो मेरे सीनियर थे, आप कहाँ पर हो? बोला मैं आपके शहर में हूँ हैदराबाद, एक बार मिलने का दिल करता है, प्रोग्राम बनाओ, लेट अस हैव ए डिनर टुगेदर। मेरे को इतना सुना तो मैंने अपना स्कूटर उठाया, EY 5299 बजाज सुपर, और वो 42 किलोमीटर दूर चलाकर मैं पहुंचा उसके पास में। उसने बड़ा अच्छा वेलकम किया, खाना साथ में खिलाया। बोला क्या करते हो? उस टाइम पर तक मैं कुछ कर नहीं रहा था, बस वैसे ही कुछ काम की तलाश कर रहा था। पिताजी के पास 2 अपने ट्रक थे, वो कभी चक्कर मार के आते थे, उनका हिसाब ले लिया करता, ड्राइवरों से क्या खर्चा हुआ क्या नहीं। वो कोई 15-20 मिनट 1 घंटे का काम होता था बस। तो उसने कहा कि यार तू एक काम कर, यहाँ पर हमारे 300-250 ऑफिसर हैं, हर हफ्ते कोई ऑफिसर ट्रांसफर होता है, और तुम कहते हो कि पिताजी के पास 2 ट्रक है, व्हाई डोंट यू मेक देम ट्रक हियर टू कैरी देयर हाउस होल्ड गुड्स। मैं बोला सर ये तो मेरे को करना नहीं आता। बोला कुछ भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सीख जाओगे। मैं बोला सर छोटा भाई है, वो मेडिकल पढ़ रहा है, एक बार यदि वो मेरे साथ हो जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि ये काम शुरू करूं। अगले दिन मैं भाई से पूछा, भाई बोला कि यार यदि काम एयरफोर्स का मिल रहा है तो स्टार्ट करना चाहिए। मैं बोला मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। बोला मैं कल से मेडिकल छोड़ी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कूटर में बैठकर दोबारा फिर चल पड़े उसके पास में, और उनकी अफसर मैच के अंदर 4-5 ऑफिसर ने उन्हें इकट्ठे कर रखे थे, और वहीं बैठे बैठे बात बनी और हमने कहा कि सर हम काम करेंगे, और नामकरण वहीं पर हो गया अग्रवाल हाउस होल्ड कैरियर, जो 1 साल के बाद अग्रवाल पैकर्स एंड मोल्ड्स बना, और फिर कुछ सालों के बाद अग्रवाल पैकर्स मोल्ड्स लिमिटेड बना। वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो मैं आप सबको ये क्यों ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि आप जब लीग से हटकर कुछ काम करते हो और जब आपको महसूस हो गया कि मेरा जो काम है वो एक नेक काम है, तो उसका जैसे कहते हैं ना फल मिलता है। वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे एयरफोर्स में छोटा सा एक सेक्रीफाइस बारबेडो की का और इतना बड़ा मेरा बदलाव ला देगा। और उस तरह से मेरी सितंबर 1987 में
अग्रवाल पैकमो लिमिटेड एक कंपनी खड़ी हो गई और फिर मैं फुल डेडिकेटली उसमें लग गया। जब आदमी कोई बिजनेस करना शुरू करता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही ध्येय होता है कि वो अपने भगवान को खुश रखे। अब बिजनेस मैन का भगवान कौन होगा? उसका भगवान का ग्राहक होगा, जो मेरे को पैसे देता है, जो मेरे बच्चे पलवाता है, मेरे स्टाफ को, एम्प्लॉय को उसका घर चलवाता है। तो एक ही दिल दिमाग में सोच थी कि मेरा क्लाइंट खुश रहे, जो वो पैसे देता है उससे उसको कुछ ना कुछ ज्यादा मिले। एक ही पीड़ा की जब भी मैं कोई काम करता था किसी शिफ्टिंग का, उसके बाद फीडबैक लिया करता फोन करके कि सर क्या है जरा बतलाओ। वो क्या करता, सब कुछ बढ़िया है पर ये हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। मैं लिखता था, उसके बाद फिर काम करता था। ऐसे कितने इंसिडेंट हुए कि मैं क्लाइंट की सुनी, उसके बाद उसके ऊपर एनालाइज किया और अल्टीमेटली उस पर काम किया और उसका रिजोल्यूशन निकाला। और इस तरह से क्लाइंट मेरे बढ़ते गए, मेरे को खुशी मिलती गई। क्लाइंट का एक बार मैं उदाहरण दूंगा आपको, आप याद करोगे कि ये क्या, ये ऐसा भी पॉसिबल है। एक क्लाइंट बेंगलोर से दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद सीआर पार्क में उसको सामान खाली करना था। बंगाली क्लाइंट था, बैंक का ऑफिसर था। और जब यहां वापस पहुंचा और मेरा ट्रक इसके घर पे पहुंचा सामान लेकर, तो जो मकान मालिक था उसने कुछ सर्टेन कंडीशन थी कि मैं जब आपके घर में रहूंगा तो आप व्हाइट वॉश कराओगे, गेट वो लगाओगे, चाबी इस तरह का आप ये दरवाजे में चेंज कराओगे, घर में ये चेंज कराओगे। कई बार मकान मालिक का और टेनेंट का आपस में कोई चीजें एग्रीमेंट हो जाती है, मगर उसने कराया नहीं था। जब ट्रक सामान आ गया तो उसने कहा कि भाई आप करा कर दो, नहीं तो मैं इसमें नहीं रहूंगा। तो मकान मालिक ने देखा अब सामान भी लेकर आ गया, इसकी तो मजबूरी है तो रहेगा। पर वो भी बड़ा थोड़ा सा इस टाइप का जिद्दी आदमी था। उसने कहा कि देखो सामान जब डालूंगा जब आप मेरा सारा काम कराओगे। मेरा ट्रक 2 दिन खड़ा हो गया, 3 दिन खड़ा हो गया। फिर हमारे को दिखने लग गया ये तो 7 दिन 10 दिन तक भी काम नहीं होगा। तो हमने कहा जी क्या करें? बोला देखो सामान तो मैं उतारने नहीं दूंगा कहीं भी, सामान उतर गया तो खराब हो जाएगा। आप चाहे 10 दिन खड़ा करो चाहे 20 दिन करो, मैं आपकी पूरी हाल्टिंग दूंगा, आप सामान मेरा यहीं रखो। अल्टीमेटली उसने ठीक नहीं किया, दूसरा मकान उसने लिया 15-20 दिन के अंदर और फिर खाली करके वापस चला गया। और उसने ऑफिस में आके बोला कि 20 दिन का हाल्टिंग बताओ क्या दूं। हमने कहा सर 2,500 रुपए पर डे का लेते हैं लोगों से, तो आप मेरे को 2,000 दे दो। उसने कहा ज्यादा है, ना जैसे आपकी मर्जी वो दे दो। तो उसे 1,500 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए दिए और वो चला गया। और एक दिन आकर ये कहता है कि साहब वो 30,000 रुपए मैंने जो दिए थे रमेश जी, वो यार मेरे को कहीं ना कहीं पेन सा हो रहा है कि वाई शुड आई पे 30,000 रुपीज। आप ये लोग कहते हो कि टेंशन फ्री शिफ्टिंग, एपीएमएल का नाम है टेंशन फ्री शिफ्टिंग, तो मैं टेंशन तो कैरी कर रहा हूं, मगर ये आपके जो टेंशन फ्री वाला फार्मूला है वो कहीं ना कहीं मेरे को चुभ रहा है कि हाउ शुड आई बी ए टेंशन फ्री। हालांकि आपने कोई नाजायज नहीं मांगे, मार्केट में 2,500 बट यू चार्ज 1,500, स्टिल आई एम विद टेंशन, कैरिंग माय टेंशन। मैंने भी बात कही कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हमने इन हाउस, हमारे पास एक थिंक टैंक है इन हाउस, जो क्लाइंट की हर बात को एनालाइज करता है, सोचता है और जो कहते हैं क्लाइंट उसके ऊपर काम करता है। तो अब का सब्जेक्ट था कि टेंशन फ्री को टेंशन फ्री कैसे रियल मायने में हो और इनको जो टेंशन हुआ है उसको कैसे रिलीज करे, और ऐसे अगले बार कोई क्लाइंट के साथ हो जाए वो जीरो टेंशन कैसे करे। तो ढूंढते ढूंढते एक चीज निकल कर आई कि आने वाले टाइम में और आज तो बिल्कुल कि किसी आदमी को ऐसा टेंशन नहीं होगा। वो चाहे 10 दिन खड़ा हो, चाहे 15 दिन ट्रक खड़ा हो, चाहे 20 दिन खड़ा हो, उसकी हाल्टिंग चार्ज नेग्लिजिबल लगेगी। लोग तो मेरे लोगों ने कहा कि सर ये कैसे हो सकता है? तो हमने कहा कि जो यदि ट्रक इनके घर पे लेकर आए, यदि ट्रक की बॉडी पोर्टेबल होती और हम ये ट्रक की बॉडी अपने गोदाम में क्रेन से नीचे से उठाकर और ट्रक की बॉडी रख लेते, ट्रक को फ्री कर देते। ट्रक की कीमत 20 लाख है, ट्रक की बॉडी का जो कंटेनर है उसकी कीमत 1 लाख है। उसका हार्डली रेंट कितना होगा? जो 2,500 है वहां 100 रुपए होगा, 70 रुपए होगा। और 70 रुपए किसी से मांगे पर डे के, इट इज वेरी मच पेएबल, उसको तकलीफ नहीं होगी। तो उस दिन एक जन्म हुआ, क्यों न हम अपने गाड़ियों की जो बॉडी है वो पोर्टेबल बनाए। और उसके बाद
उस पोर्टेबल बॉडी का नाम दिया हमने अपनी भाषा में ट्रकिंग क्यूब। तो नया कंसेप्ट इंडिया में लॉन्च हुआ 2000 आई थिंक 17 को, एक ट्रकिंग क्यूब। अब जिसका जो सामान होता है उसको पहले पूछते हैं, जो ट्रक मेरा आता है सिटी में आने से पहले, सिटी से बाहर हमने पूरे हिंदुस्तान में यार्ड बना दिए, वहां ट्रक रिपोर्ट करेगा और वो बॉडी वहां उतार कर चला जाएगा। उसमें सामान होगा, क्लाइंट का खुद का ताला, खुद की चाबी, खुद ही लगाएगा और खुद ही खोलेगा। वो एज इट इज, जैसे लॉकर होता है, जैसे शिप के अंदर कंटेनर आते हैं बाहर से, ऐसे ही कंटेनर वहां पर उतर जाते हैं। फिर मेरा डिलीवरी इंचार्ज फोन करता है कि सर आपका सामान आ गया सिटी से बाहर, आपका व्हाइट वॉश हो गया, सब कुछ हो गया, आपका गृह प्रवेश का पंडित जी से मुहूर्त निकल गया, जो जिस तरह का आप चाहोगे, 4 बजे आपका माल पहुंचाना है, 8 बजे पहुंचाना है, उसी मुताबिक फिर ट्रक वो छोटा कंटेनर, जो कंटेनर उसका होता है वो डाल के उसके घर पे आते हैं और ताला चाबी उसी के पास होते हैं, वो खोलता है और सामान अपना खाली करता है। इस तरह से एक नया कंसेप्ट इंडिया में पैदा हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि किसी का सामान 1 बेडरूम, किसी का 2 बेडरूम, किसी का 3 बेडरूम, और वो एक फुल गाड़ी लेते हैं, व्हाई शुड दे पे फुल चार्ज? तो उनसे पूछा कि सर हम फुल तो नहीं लेना चाहते, मगर हम अपना ताला मारना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सामान के साथ दूसरा कोई सामान डाले, इसलिए बाय डिफॉल्ट, बाय मजबूरी हमको फुल इंगेज करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके जितना सामान है उसके साइज का एक कंटेनर दे दूं। आपको तो मतलब आपके ताले से ही है कि आपका ताला लगे, आपकी चाबी आपके जेब में हो और आप ही अगली जगह जाकर खोलो, इतना तो मतलब है। हाँ, इतना ही मतलब है। तो हमने छोटे से छोटे साइज के, डिफरेंट साइज के सिंगल बैचलर कंटेनर, 1 बेडरूम के कंटेनर, 2 बेडरूम के कंटेनर, 3 बेडरूम के कंटेनर, 4 बेडरूम के कंटेनर, हर साइज के बना दिए। दैट स्टार्ट फ्रॉम 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 16 फीट, 18 फीट, 20 फीट, जिस साइज का है उस साइज का लो, उतना ही भाड़ा दो और 10% प्रीमियम दो। और उस तरह से हम एक ट्रक के अंदर 4 या 5 कंटेनर ले जाने लग गए। तो मेरा भाड़ा 5 लोगों से लेने, हर किसी से मैं 10% प्रीमियम लूंगा, तो मेरा भाड़ा भी 25, 30, 40% बढ़ गया। उनका जो 100% लगता था, उनके 70% लगने लग गया, 60% लगने लग गया। और उनको एक तसल्ली हो गई कि मेरा ताला, मेरी चाबी मेरे पास रखता हूं और जाऊंगा तो मैं ही खोलूंगा। तो एक नई कंसेप्ट का जन्म हो गया कि जिसका नाम है ट्रकिंग क्यूब। अब शेयर करके भी लेके जाते हैं, इसको नाम देते हैं एक्सक्लूसिव बट इंक्लूसिव। भाड़ा इंक्लूसिव और कंटेनर आपका एक्सक्लूसिव। दैट मीन्स इट इज एज गुड एज लॉकर्स ऑन व्हील्स। और इस तरह की एक नई सर्विस शुरू हो गई। अब आप ये पूछो कि सर्विस का जन्म किसने दिया, क्या मेरे ध्यान में आता था? क्योंकि उस बंगाली ऑफिसर ने जब आकर कंप्लेन करी, कहा कि आपका जो टेंशन फ्री शिफ्टिंग का जो कंसेप्ट है वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं गूंज रहा है। हमने उस पर काम किया। तो कहने का यह मतलब है कि क्लाइंट आपको, यदि आप क्लाइंट को देखोगे, क्लाइंट का ध्यान दोगे, वो क्लाइंट को यदि आपने भगवान माना, तो भगवान कभी भी किसी को देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता। तो मेरे उस क्लाइंट रूपी भगवान ने मेरे को ऐसा कंसेप्ट दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर ये ट्रकिंग क्यूब का कोई रिलीवर नहीं है। और पूरे इंडिया के अंदर जब मैं अप्रोक्सीमेटली 16 लाख की पैकिंग होती है, शिफ्टिंग होती है, 16 लाख लोग शिफ्ट करते हैं एक साल में, 1.25 लाख एपीएमएल अलोन करता है और बाकी के 12-13 लाख पूरे हिंदुस्तान में 40,000 कंपनियां हैं पैकर मूर्स, वो मिलकर करती है। तो अब कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है 14 लाख तक पहुंचना, क्योंकि मेरे पास जो कंसेप्ट है सस्ता, लोग 100 में लेके जाएंगे तो मैं 70 में लेके जाऊंगा। लोग 100 में ले जाने के बाद भी सामान डालने का डर रहता है, मेरा वो डर भी नहीं है, बिकॉज उसका ताला, उसकी चाबी। और इसके अंदर जो कंटेनर जो हमने बनाया वो इस टाइप का बनाया है, अंदर सीट, ताला, बेल्ट, जैसे एयरक्राफ्ट होता है, हर तरह का अलग फैसिलिटीज, क्योंकि एक नई चीज का जन्म हो गया। तो ऐसा एक नया कंसेप्ट जन्म हुआ बिकॉज ऑफ माई क्लाइंट्स, जो भगवान रूपी क्लाइंट, उनके कारण। तो आपको जब कभी भी व्यापार में जब आप ओनर बन जाते हो, तो आपका फिर नेक्स्ट फर्ज बनता है कि अपनी इनकी सुनो और आगे बढ़ते जाओ। साथ ही साथ एक चीज और होती है, ये तो आपके ओनर, क्लाइंट तो आपके भगवान है जो आपको देकर जाएंगे, पर आपके जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी कम नहीं होते। कैनी टाइम्स मैंने देखा है कि कोई कंप्लेन लेके आता है, हम क्या कहते हैं,
छोड़ यार, ये तो बहुत फालतू लड़का है, ऐसे ही बोलता रहता है, इसी कंप्लेन कभी खत्म नहीं होती। आप कभी दिल से लेट अस बी अ गुड लिसनर, उसकी सुनो एक बार। मैं कहता हूं 100 में से 90 ऐसे लोग होंगे जो आपके सिस्टम को ठीक कर देंगे, आपको एक नया रास्ता दिखा देंगे। उनकी छोटी छोटी चीज होती है, पगलापन की चीज होती है, बट दे विल चेंज यूर साइंस। ये आपके एसओपी को चेंज कर देंगे। इसी तरह एक बार की बात है, मैं बात कर रहा हूं 2003 की। एक लड़का जो हमारे पास सुपरवाइजर होता था, गाड़ी लोडिंग कराता था। वो गाड़ी लोडिंग कराने के लिए दिल्ली में एक जगह है सरिता विहार के पास में, और ओनिडा टीवी की गाड़ी कलकत्ता जानी थी, दिल्ली से कलकत्ता। जब गाड़ी लोड करते हैं तो ड्राइवर को हम उस टाइम पर कैश एडवांस देते थे। आजकल तो हम आरटीजी कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड के अंदर डाल देते हैं पैसा, बट दैट टाइम इट वाज ए कैश। 22,000 रुपये उसको एडवांस देना था। लड़का पहाड़गंज ऑफिस से बैठा 22,000 रुपये लेकर, ताकि मैं गाड़ी को मोहन कोऑपरेटिव सरिता विहार के अंदर दे दूं। जब वो सरिता विहार कोऑपरेटिव पहुंचा तो उसकी जेब के अंदर से 22,000 रुपये गायब। जेब किसी ने काट ली थी। रेड लाइन बसें चलती थी उस जमाने में, जेब कतरे बहुत होते थे। जब उसने जेब में हाथ मारा तो हाथ ही हाथ मिला, पैसे नहीं मिले। सफेद हो गया लड़का बिल्कुल, क्योंकि 12-13 हजार रुपये की तनख्वाह वाला और 22,000 रुपये खो जाए तो आप सोच सकते हो कि क्या उसकी हालत होती होगी। ही वॉज वेरी सैड, अपसेट। किसी तरह दूसरे 22,000 रुपये भेजे गए, गाड़ी को तो छोड़ा गया, मगर वो 22,000 रुपये उस मिस्टर कुशवाहा के नाम पर लिख दिए। और वो बड़ा बेचैन कि भी मैं 22,000 रुपये कैसे दूंगा, मेरी कौन सी गलती हो गई, खो गया, मैं तो कंपनी के काम पे गया था। तो अल्टीमेटली हमारे कंपनी के अंदर एक दिन होता है जिस दैट्स कॉल्ड मंथन डे। हर महीने की 4 तारीख को सब जितने भी ग्राउंड के वर्कर्स बैठते हैं, ऑफिसर अधिकारी बैठते हैं, और जिसकी समस्या होती है वहीं सुनी जाती है, वहीं उसका रिजोल्यूशन होता है। एक टाइम फिक्स होता है, 8:30 बजे 9:30 खत्म हो जाता है। उस मंथन डे में वो मिस्टर कुशवाहा भी खड़ा हुआ था। उसने अपना प्रस्ताव रखा कि सर मेरे ऐसे 22,000 रुपये खो गए, और थैंक गॉड उस मीटिंग में मैं भी था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हमारे 134 ऑफिस है, हर जगह उस दिन ये मंथन मीटिंग होती है। वहां का एचओडी होता है, उसको वो चेयर करता है। तो दिल्ली में हो रही थी तो मैं था और मैंने उसको चेयर कर रहा था। मैंने उसको कुशवाहा से पूछा भी क्यों चोरी होगी, बोला सर वो जेब काट ली। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आगे से चोरी ना हो इसकी क्या गारंटी है। देन ही सेड सर मैं सावधानी से लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा कि इसका मतलब अब तुम सावधानी से लेके नहीं गए। तो बोला जी लेके गया था, तो फिर सावधानी से लेकर गए, फिर कट गई, अब दोबारा बोल रहे कि मैं सावधानी से लेकर जाऊंगा तो फिर कटेगी। आप मेरे लिए कोई ऐसा सोल्यूशन बताओ कि आपकी जेब कभी भी नहीं कटेगी। तो ये 22,000 रुपये माफ, और नहीं लाओगे तो 22,000 रुपये ना। 15 मिनट के अंदर वो कुशवाहा दोबारा आता है, और आने के बाद बोलता है कि अब जेब सर मेरी नहीं, अब हिंदुस्तान में किसी की भी नहीं कटेगी। मैं बोला भी कैसे। उसने अपने बनियान की जेब में, बनियान के अंदर एक जेब लगा रखी थी, और कहा कि ये पैसा अब आगे से मैं लेके जाऊंगा तो इस बनियान में डालूंगा। और मेरी माँ ने कहा था कोई की चीज यदि आप दिल के पास रखते हो तो वो चोरी नहीं होती, वो खोती नहीं। तो अब मेरी कभी नहीं खोएगी सर। मैं बड़ा खुश हुआ और कहा कि तुम्हारे 22,000 माफ। और उसी टाइम पर 1,000 बनियान हमने बनाई, सब में जेब लगाई, और सब जितने भी जो सुपरवाइजर थे जो कैश कैरी करते थे सबको दे दिया कि बेटा अब कोई भी कैश कैरी करोगे तो आप इस बनियान में लेके जाओगे। बनियान में डालने के बाद चोरी होता है तो कंपनी का चोरी होगा, और यदि आप दूसरी पॉकेट में डालोगे चोरी होगा तो आपका होगा। और 2003 से लेकर 2020 17 साल हो गए, हमारा कोई भी पैसा किसी तरह का भी चोरी नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि हम हर चीज को जब तक उसका समाधान जड़ से नहीं सोचेंगे कि समाधान को उसके गहराई में नहीं जाएंगे तो समाधान आपको टेम्परेरी होगा, वो आपको रिलीफ नहीं देगा, फिर ऊपर कर खड़ा हो जाएगा। आपको उसको तो गहराई में जाना पड़ेगा, और समाधान की जरूरी नहीं कि गहराई में जाओ और आप 5 आदमी जो कंपनी में बैठे वही सोचो। वो आदमी जो सफर किया है वो इससे बेटर सॉल्यूशन दे सकता है, बिकॉज ही हैज सफरर, ही हैज फेस्ड इट। तो उसको चांस दो और मौका दो कि आप इसकी परमानेंट सॉल्यूशन लाओ, वही आदमी लाकर देगा। तो इस तरह से हमने अपने एम्प्लॉइज को अपने साथ में जोड़ा और टीम बनती गई, और आज 6,700 लोग हमारे पास
काम कर रहे हैं, वी आर ऑल हैप्पी, पीपल आर लाइक ओनर, दे आर वर्किंग विद अस। तो इस तरह से एम्प्लॉय भी हमारे साथ जुड़ गए, क्लाइंट भी हमारे साथ जुड़ गए, आउट ऑफ बॉक्स करके हमने अपना काम शुरू कर दिया था। जब कोई भी आदमी जब कुछ भी सोचता है और जब वो करता है तो एक इच्छा कभी आदमी की होती है कि मैं आज बढ़ तो रहा हूं, मैं चढ़ूं कैसे। बढ़ने और चढ़ने में बहुत फर्क होता है। जैसे आपने देखा होगा एक लता या पेड़ जब आपका बढ़ता है तो वो एवरीडे बढ़ता रहता है, और वो जब चढ़ने का मौका, लता का मतलब मनी प्लांट देखा होगा आपने, चढ़ने का मौका जब मिलता है और कुछ बढ़ते बढ़ते रास्ते में कोई पेड़ आ जाए, जब वो चढ़ जाता है तो आदमी भी जिंदगी में बढ़ता तो रहेगा, 100 करोड़ का बिजनेस करेगा, फिर 125 का होगा, 140 का होगा, बढ़ता रहेगा, एवरी ईयर ही विल गेट ए 10% का जंप होता रहेगा। बट 100 से 200, फिर 200 से 500, वो जब चढ़ना जिसको बोलते हैं वो तभी चढ़ पाएगा जब उसके रास्ते में कोई पेड़ आएगा। बिजनेसमैन के रास्ते में पेड़ का मतलब ये कोई पीपल का पेड़, नीम का पेड़, ये पेड़ नहीं होता। उसके रास्ते में पेड़ आना मतलब एक अपने आप के अंदर एक उसके कुछ कर्म ऐसे किए हों जो पेड़ का रूप काम करे और वो चढ़े। तो ये चीज मैंने सीखी हुई थी कि बेटा पिताजी से कि जब आप कुछ काम में, जब आपके पास कुछ हो जाए 2 पैसे, तो आप पेड़ जरूर उगा देना। तो मैंने उस टाइम पर पेड़ का मतलब पूछ लिया था कि पिताजी पेड़ है क्या, तो आई गोट ए पेड़। तो मैंने सोचा कि अब कंपनी के 2012 में 25 साल हो गए थे और 25 साल के बाद एक मन था कि अब एक पेड़ लगाएं। तो वो पेड़ कैसा हो, किस तरह का हो, वो हमने चर्चा की कि हमने सोचा कि समाज से, इस ट्रेड से, ट्रांसपोर्ट ट्रेड से, हम AEY 5299 स्कूटर से स्टार्ट किया था। आज विद ग्रेस ऑफ गॉड हमारे पास 1500 ट्रक है, हमारे पास 134-35 ऑफिस है, 180 कंट्रियों में एजेंसी है, 6-7 हजार लोग काम कर रहे हैं, 20 लाख 25 लाख तक हमारे पास वेयर हाउस की वो है। बहुत कुछ दिया, और इस जब सोसाइटी ने दिया तो इसका बदला कैसे उतारे। दोस्तों एक पेड़ लगाने की सोची और एक जन्म हुआ कि जो ड्राइवर और हिंदुस्तान में जो ट्रक पे गाड़ी चलाते हैं, ट्रक से जब ये रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो 1,38,000 पीपल दे डाई बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एवरी ईयर। ये भारत सरकार का डाटा है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस पे कोई काम किया जाए, और उस पे काम करना शुरू किया। तो मालूम हुआ एनालाइज करने के बाद 24 या 25,000 आदमी इसलिए मरते हैं कि ड्राइवर दे डोंट स्लीप प्रॉपरली। हमने ड्राइवर से पूछा कि भाई आप लोगों के कारण 24-25 हजार आदमी मर जाते हैं, आपको मालूम है कि? अब सर नहीं मालूम। और ये इसलिए मरते हैं कि आप सोते नहीं। तो आप किसी भिखारी से पूछोगे कि भिखारी भाई अच्छा खाना खाया करो नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी, भिखारी क्या बोलेगा? अरे साहब मजाक कर रहे हो, खाना ही कहाँ है। तो सेम वे ड्राइवर से कि सब नींद है कहाँ, हम तो सोना चाहते हैं और हम सोने से यदि ये बचते हैं तो हम सोएंगे, पर नींद है कहाँ। हम बोले कि सोया करो, गाड़ी के ऊपर डबल बर्थ लगे हुए हैं। जैसे हम यदि सो जाएंगे तो जब जहां गाड़ी पार्क करते हैं सोते ही डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, तिरपाल की चोरी, जेब से पैसे झपकते ही लोग ले जाएंगे और मालिक क्या कहेगा? साले ने बेच के खा गया होगा। तो सर हम आराम जरूर करते हैं, हम सोते नहीं, हम बस बैठे बैठे नींद के झपके ले लेते हैं। और इसके कारण वो नींद जो रहती है वो परेशान करती है। कोई भी आदमी यदि एक सामान्य आदमी 6 घंटे एंड प्लस नहीं सोएगा तो वो बहुत मुश्किल है उसको अगले दिन काम करना। और ये ड्राइवर बेचारे इस तरह से काम करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं नींद से। फिर मैं पूछा कि आप नींद से फिर कभी तो नींद आती होगी। देन दे सेड कि सर हमने इंतजाम कर रखा है, नींद को मार देते हैं। वो काली गोली जेब से निकाली और दिखाई, ये खा लेते हैं। सर मैं ये क्या है? अरे सर वो आप समझते हो ना। तो देन आई केम टू नो ये अफीम खाते हैं और धीरे धीरे करके ये अफीमची बन जाते हैं नींद को मारने के चक्कर में। और इस तरह से एक ड्राइवर आम आदमी से 10 साल पहले मरता है। हमारी औसत आयु 77 ईयर्स है और ड्राइवर की आयु 67 है। 10 साल पहले इस संसार से वो विदा होता है अपनी मेहनत करने के बाद भी। तो सोचा कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है, क्यों ना ऐसा काम किया जाए
इन ड्राइवरों से एक्सीडेंट कम होंगे तो इनकी इज्जत भी होगी, ये अफीमची भी ना बनेंगे, अपना घर परिवार भी चलाएंगे, और दुनिया भर के रास्ते के जो ऐसे ऐसी बीमारियां होती है, यू नो बेटर कि कौन सी जगह कैसे रेड जोन एरिया होता है, या वहां जाकर कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं, तो वो भी ना हो, उसके ऊपर एक विचार बना कि हम क्यों न एक सोने का केंद्र बनाए, निंद्रा दान केंद्र, सोने का, नींद का केंद्र, जहां ये ड्राइवर सो जाए, और सोएंगे जब इनको डीजल की चोरी का भय ना हो, स्टेपनी का भय ना हो, पैसे की चोरी का भय ना हो, और सोने के लिए चारपाई हो, कंबल हो, पंखा हो, लैट्रिन बाथरूम एयरपोर्ट जैसे हो, और इनकी गाड़ी पार्किंग के लिए ऐसी व्यवस्था हो। तो इस तरह से एक सोच बनी कि हिंदुस्तान में कौन सी एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अल्टीमेटली वी फाउंड कि एक जगह जयपुर से अजमेर के बीच में जाते हैं, किशनगढ़ से पहले एक जगह दुद्धू, वहां हाईएस्ट एक्सीडेंट होते हैं इंडिया के। तो हमने सोचा कि इस जगह को सेलेक्ट करते हैं, और वहां पर हमने एक 50 एकड़ का टुकड़ा लिया, और उसके अंदर 500 चारपाई, 500 पंखे, कंबल, लैट्रिन बाथरूम एयरपोर्ट जैसे, कपड़े धोने की मशीनें, नाई की मशीनें, ड्राइवरों की पाँव को धोकर मसाज करने का सिस्टम, एम्बुलेंस, डॉक्टर और गाड़ियों की पार्किंग, पूरी व्यवस्था लगा दी। और ड्राइवरों को कहा कि ड्राइवर भाइयों, आपका ये केंद्र है, आप यहाँ सोओगे, जो ड्राइवर 3 घंटे से ज्यादा सोएगा उसके ये सारा का सारा जो खर्चा लगता है, ये सब कुछ नाई का, और का, कपड़े धोने का, बैठने का, सब कुछ माफ। वी डोंट चार्ज एनीथिंग, बट यू हैव टू फिल अ फॉर्म कि आई विल स्लीप 3 आवर्स और मोर। और इस तरह से ये केंद्र हमारे को अप्रोक्सीमेटली 10 से 12,000 नींद दिलाने का काम करने लग गया। आप ताजुब करोगे इस 12,000 नींद ने जो काम किया है देश के लिए, कि इससे 30 या 32 जाने अदरवाइज अक्सर हर महीने जाती थी। यदि ये केंद्र ना होता तो इस केंद्र के कारण आज 30 से 32 जाने अपनी बचने लग गई। आपने एक सत्यमेव जयते आता था, देखा होगा। उस सत्यमेव जयते के अंदर इस केंद्र की एक दिन आपकी पूरी शूटिंग की है आमिर खान ने, और ड्राइवरों के बारे में उन्होंने लिखा है कि ड्राइवर देश की इकोनॉमी चलाता है, ड्राइवर देश की रक्तचाप है इकोनॉमी की, और इस केंद्र के बारे में उसने पूरी स्टोरी लिखी है, और ये सारी स्टोरी कैप्चर किया है। तो इस तरह से आज एक मन किया कि हम कुछ बढ़े, तो ये बढ़ने की मतलब एक लाइन के अंदर एक नया काम करने का मन किया, तो ये एक छोटा सा काम किया। अब दूसरा मन है कि ये केंद्र चल पड़ा हमारा, तो एक मध्य प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर महाराष्ट्र बॉर्डर है, NH6 जो बम्बे से कलकत्ता जाता है, जिसका नाम है मलकापुर, वहां भी एक दूसरा केंद्र छोटा 200 बेड का खोलने का मन है। भगवान ने चाहे तो वो जल्दी खोल देंगे। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि सर ये चढ़ना और बढ़ने में बहुत फर्क है। अब आपके पास तो पैसा था, आप तो बढ़ते बढ़ते चढ़ गए, मेरे पास तो पैसा नहीं है और मैं चढ़ना चाहता हूं, तो मैं कैसे चढ़ूं? मेरी एक बात याद आ रही है कि मैं एक संघ की शाखा में बैठा था RSS के अंदर, मेरे पास कुछ दायित्व है वहां पर, तो उन्होंने एक मेरे को कहानी सुनाई, मेरे को बिल्कुल याद है, वो मैं आपको भी यहाँ शेयर करूंगा। एक जो मकर संक्रांति होती है तो काफी लोगों का मन होता है कि संक्रांति के दिन हम कुछ ना कुछ बांटे, कुछ ना कुछ दें लोगों को, और इस तरह से एक लाला जी का मन हुआ कि मैं मकर संक्रांति के दिन 1000 अच्छे वाले कंबल बांटूंगा, और कंबल बांटने शुरू करूंगा मैं 7 बजे, और 7 बजे के बाद जो पहले आएगा पहला, दूसरा आएगा दूसरा, इस तरह से 1000 कंबल बांटूंगा, हजारों जो पहले लोग आएंगे उनको बांट दूंगा। और उसने 25 छपवा दिए। जब सुना कि लाला जी अच्छे कंबल बांटेगा तो काफी लोग सोचा कि जब हम 7 बजे पहुंचेंगे पता नहीं मिले ना मिले, तो लोगों ने 6 बजे से लाइन लगा दी, और जब 6 बजे से लाइन लगा दी तो लंबी लाइन, दिख नहीं रहा कि कितने लोग आगे हैं। तो एक जेंटलमैन एक किसी भिखारी के पीछे खड़ा हुआ था, वो कह रहा था कि भिखारी भाई, ये जो लाइन लगी है बाबा जी, क्या हमारा नंबर आएगा? फालतू में तो नहीं खड़े? तो बाबा जी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, आपका आए ना आए पर मेरा नंबर जरूर आएगा, मेरे को तो अपना विश्वास है, मैं तो इसी विश्वास पे खड़ा हूं। फिर 2 मिनट के बाद फिर बोलता कि बाबा जी मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा क्या? बाबा जी ने कहा यार मेरा नंबर आएगा, तुम्हारा भी आएगा, चिंता मत करो, आराम से बैठो, आएगा नंबर। तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, तो बाबा जी बोला कि एक काम करो, मेरे को तो विश्वास है मेरा नंबर आएगा, आप ऐसा काम करो मेरे सामने आ जाओ, मेरे को पीछे कर दो, तो मेरा जब आएगा तो तुम्हारा तो कंपल्सरी आएगा।
बाबा जी ने उसको आगे कर दिया, आप पीछे हो गए। अब बाबा जी के पीछे वाला एक आदमी फिर बोला मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। बाबा जी ने कहा आ जाओ भैया आगे आ जाओ। बाबा जी उनको आगे करते गए, आप पीछे होते गए। और जो ही जब वो कंबल बांटने वाले के पास पहुंचे तो उस टाइम तक 1000 कंबल खत्म हो चुके थे, तो बाबा जी का नंबर नहीं आया। और कंबल बांटने वाले उसकी एक्टिविटी देख रहा था और पूछा बाबा जी आपको जब कंबल ही नहीं चाहिए था तो क्यों सुबह से लाइन में खड़े थे, आप क्या कर रहे थे आप? बाबा जी ने कहा कंबल बांटने वालों के, लाला जी जो आप कर रहे थे वही मैं कर रहा था। लाला जी ने कहा कि मैं तो मेरे कंबल बांट रहा था। बोले लाला जी मेरे पास तो कुछ था नहीं, मैं तो फक्कड़ आदमी हूं, मैं मेरी बारी बांट रहा था। आपने कंबल बांटे, मैंने बारी बांटा। आपने जो काम किया वो काम मैंने किया। तो दोस्तों बढ़ने के लिए और चढ़ने के लिए, बढ़ने से चढ़ने के लिए आपके पास यदि बारी बांट के भी आप पेड़ उगा रहे हो तो भी आपने मेरे जैसे सेवा केंद्र का जो काम किया इतने पैसे लगाकर, तो आपने बारी बांटकर भी अपना पेड़ खड़ा कर लिया। ऐसे भी आप पेड़ खड़ा कर सकते हो। तो उसके लिए कोई धन की जरूरत नहीं है, अपने मन की जरूरत है। मन ऐसा हो कि समाज ने मेरे को दिया है, इसका मेरे पास कर्जा है, मैं मेरे मरने से पहले ये कर्ज से मुक्त होना चाहता हूं। तो आप इस तरह के पेड़ लगाते जाओ। जब इस तरह के पेड़ लगेंगे तो आप सर्विस में होगे तब चढ़ोगे, बिजनेस करोगे तब चढ़ोगे। इस तरह से आपको चढ़ना बहुत ही, एक तरह से मैं अपना कह सकता हूं कि आपको कोई रोक नहीं सकता, भगवान का रूप भी आकर रोक नहीं सकता, आप चढ़ोगे कैसे भी। तो आज इस सारे के लिए आई थिंक 1.25 घंटा हो गया, 1 घंटे का समय था, मैंने आप लोगों को सुनाया और कुछ मेरे अपने व्यक्तिगत विचार थे। कई जगह आप लोग सहमत ना हो तो मेरे को माफ कर देना, सहमत है तो इसको इम्प्लीमेंट करना। और मैं अब ये कहकर एक बार जय हिंद बोलूंगा। शायद आप मेरे साथ अपने मन में न गुनगुना कर आप भी जोर से बोलना, और उसके बाद मेरा वक्तव्य खत्म करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर। आप पुनः आपको सुन के एक तरह से भाव विभोर हो गए आज हम, और ऐसा लगा कि मतलब एक अलग सी फीलिंग जो मन में आती है। आप इस जो बच्चों के रिप्लाई से आपको पता चल रहा होगा सर, बच्चों को भी कैसा फील हुआ होगा आज। और शुरुआती जब ये इनिशियल फेज में जब वेबिनार चालू हुआ था, थोड़ा तकनीकी कारणों से हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके लिए मैं पूरे कॉलेज की तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहूंगा सर, क्योंकि क्या होता है कि तकनीकी प्लेटफॉर्म पे मॉनिटरिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कभी कभार। तो ये कुछ चीजें हो गई, लेकिन जब जो चीज सही हो जाए उसका एक अच्छा परिणाम होता है, और अंत बहुत अच्छा हुआ। तो उसी के साथ सर आज का जो आपका जो स्पीच था वो वापस पुनः भाव विभोर करने वाला था, जिस तरीके से हमने आपको पहले सुना था। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी के लिए भी मोटिवेशनल नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी जर्नी है और जो आपका डाउन टू अर्थ नेचर है वो अपने आप में लोगों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और स्पेशली मैं तो आपको देख के और आपके जो काम करने के तरीके से बहुत मोटिवेट, जब से मैं आपको जानता हूं उस दिन से हूं। तो हमारे लिए तो सर यू आर डेफिनेटली अ लिविंग लेजेंड, नो डाउट पूरी कंट्री के लिए है और हमारे लिए तो है ही है सर। इसी के साथ जो आपने कहा कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो अगर आपको सफलता पानी है तो सफलता निश्चित है। मेहनत अगर आपके पास होगी तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। जिस तरीके से चिड़िया को भी खाना जब मिलता है, प्रकृति जब खाना देती है तो वो भी उसे घोंसले में नहीं देती, उसे भी उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति दिल से मेहनत करे, उसमें अपना दिल लगाए जो वो काम कर रहा है और मंच के उसके साथ लग जाए, तो मुझे नहीं लगता सफलता अनिश्चित है, सफलता श्योरली निश्चित है। और किसी भी लेवल पे आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। और इसी के साथ कुछ विद्यार्थियों के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए हैं सर, तो कुछ 10 से 12 मिनट का समय हम आपका और लेंगे, आपसे आज्ञा चाहेंगे कि तो विद्यार्थियों के क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन है, आयुषी नाहक जो हमारी एमबीए की स्टूडेंट है, उसने पूछा है कि यू टॉट अस वेल हाउ टू टर्न द मिस्टेक इनटू अ बोन इन अ पाथ,
But sir, what about competition? How to get rid of that? How to stay uniquely in this competitive world? सर स्पीकर ऑन करना पड़ेगा सर। आयुषी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल रेलिवेंट है। एक बार कंपटीशन के अंदर यदि आपकी क्वालिटी है, उस बार सपोज करो आप बाहर हो गए होगे, पर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के अंदर वही ठहरेगा जो आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा, जिसके पास क्वालिटी होगी और जिसके पास अपने प्रोडक्ट और अपने ग्राहक के लिए वैल्यू होगा। जब मैं कोई नया प्रोडक्ट बनाता हूं तो मेरे को उसके R&D के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, और यदि मैं उसको उसी खर्चे को उसी के ऊपर डाल दूं तो मेरे को मालूम है ये प्रोडक्ट मेरा 10 साल चलेगा, तो उस खर्चे को मैं 10 ईयर्स में बांट देता हूं। तो 10 साल में बांटने के बाद वो प्रोडक्ट मेरा सस्ता पड़ता है और वो इनोवेटिव आइडिया मेरे को खड़ा कर देता है। कंपटीशन में जितने भी लोग हैं सारे बाहर हो जाते हैं। तो आपको हमेशा एक सोच ये बनानी पड़ेगी कि मेरे तो दो तरह की सोच होती है कि मैं क्या कमाऊं। तो आपको अलग सोच आपके दिमाग में आएगी। एक सोच ये बनानी पड़ेगी मेरा क्लाइंट कैसे एंजॉय करे कम रेट में, तो आपकी सोच प्रो क्लाइंट बन जाएगी। तो आपको अपनी सोच बनानी है प्रो क्लाइंट, प्रो क्लाइंट, प्रो क्लाइंट, केवल दिमाग में डालना है प्रो क्लाइंट। और जब क्लाइंट आप पर प्रो क्लाइंट सोच बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट बढ़िया होगा, क्लाइंट के प्रति होगा, और आपका बैलेंस शीट वो क्लाइंट अपने आप ही अच्छी, जब आप क्लाइंट के लिए करके दे रहे हो तो क्लाइंट आपके लिए करके देगा। तो केवल सोच को बदलना है कि मैं मेरी सोच मेरे क्लाइंट के लिए काम करूं, मेरे ग्राहक के लिए काम करूं, और आप कंपटीशन के अंदर कोई आपको हरा नहीं सकता, मेरा ये कहना है। डेफिनेटली सर, अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहना है तो ग्राहक भगवान अगर जो मानता है, जिस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन और आपने जो जिस तरीके से लोगों के लिए काम किया है, तो मुझे लगता है कि अगर इस विचारधारा के साथ कोई आगे बढ़ेगा तो उसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी ट्रू सर। कार्तिक बच्चे ने पूछा है सर कि फ्यूचर के संभावनाओं को देखते हुए काफी सारा अपकमिंग फ्यूचर में ये सब चीजें जो चल रही है, अगर किसी को स्टार्टअप चालू करना है तो उस केस में कि क्या ये समय सही है या किस तरीके से चालू कर सकता है? देखो, स्टार्टअप अगेन वही मायना है कि एक टेम्परेरी कि मैं ये करके और यहाँ पर बढ़ जाऊं। जो कितने स्टार्टअप आए, एक स्टेज पर बढ़े और सारे खत्म हो गए। आपको सबसे पहले कोई चीज जब कोई करनी होती है तो अपने दिल और दिमाग से ये पूछना है, बहुत ध्यान से सबके लिए है ये, कि मैं जो काम करने जा रहा हूं या जो स्टार्टअप करने जा रहा हूं, इस स्टार्टअप में इनिशियल प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम की इनिशियल है, शुरुआती प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम की शुरुआत है। दो भाव है यहाँ पर। जो मैं कुछ करने जा रहा हूं उसमें शुरुआती प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम की शुरुआत है। यदि शुरुआती प्रॉब्लम है तो नो इशू, यू विल रिकवर इट, यू विल आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। और जहां ये लग रहा है आपको कि प्रॉब्लम की शुरुआत है, इमीडिएटली एग्जिट हो जाओ, आप उसके हाथ मत लगाओ, वो आपके अंदर से ही आती है। तो मैनी पीपल ये सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, देख ले, झेल लेंगे। तो वो प्रॉब्लम की शुरुआत और शुरुआत की प्रॉब्लम, तो इसमें से दोनों में से एक भाव निकालना है। कुछ भी चीज ऐसी है स्टार्टअप करने में, कोई जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप करने में कोई बिजनेस ही स्टार्ट करो। एक मेरे पास कोई ट्रेनिंग ले रहा था, तो उसको वो मेरे पास आया, तो मैं बोला जी आजकल लोग कहाँ दुखी हैं? तो बोला जी बहुत जगह दुखी हैं, क्योंकि जहां मोर पेन मोर गेन, जो कहीं किसी का दुख निवारण करोगे अपने स्टार्टअप से, वहां आपको बेनिफिट मिलेगा। बट उसकी लाइफ देखनी कि लाइफ कितनी लंबी है। तो मैंने कहा कि आज आप हमारे से पूछो एज ए ट्रांसपोर्टर्स, हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हाईवेज हैं वहां पर मतलब एक भ्रष्टाचार की पूरी गंगा बह रही है। 28,000 करोड़ का भ्रष्टाचार के आरटीओ प्लस हाईवे के ऊपर जितने लोग रहते हैं वो पैसा लेते हैं। और कितनी सरकार बदल गई, कोई सरकार इसको ठीक नहीं कर पाई। किसी ने कोई पकड़ लिए, एंटी करप्शन ने पकड़ लिए, बट स्टिल नो वन कैन डू इट। तो घूम फिरने के बाद ये आया कि कोई ऐसा काम करो
जिसमें ये लोग भ्रष्टाचार खत्म कर दे। एक आइडिया निकल कर आया, एक ऐप बनने जा रही है। वो ऐप क्या होगी, सपोज करो उदयपुर से हमारी गाड़ी निकल रही है, तो सबसे पहले एक आरटीओ चेक पोस्ट के ऊपर वो पेपर देखता है, विंडो बना रखी है छोटी सी, और विंडो बनने के बाद जो इसने पेपर देखे, ठप्पा मारा, और उससे 100 मीटर दूर एक बैरियर उन्होंने प्रपोज किया है कि एक बैरियर लगेगा। बैरियर बंद होगा, जब वो बैरियर के पास पहुंचेगा और अपनी ऐप ऑन करेगा, तो जिस फोन से ऐप ऑन करेगा तो मालूम हो जाएगा कि ये अशोक सिंह ड्राइवर ने अपनी ऐप ऑन करी है, उसका डीएल नंबर ये है। उसके बाद वहां 3 बटन आएंगे ऑन करते ही, हरा और ऑरेंज और लाल। कोई भी एक बटन दबाने से वो बैरियर खुलेगा, नहीं तो बैरियर नहीं खुलेगा और ट्रक आगे नहीं जाएगा। उसमें लिखा है कि यदि ये ऑफिसर ने जो आप 100 मीटर पहले आपसे पैसे लिए और दुखी किया तो लाल दबा दो, खुश करके भेजा तो हरा दबा दो, थोड़े मोटे पैसे लिए तो ऑरेंज दबा दो, कुछ भी एक दबाना पड़ेगा। सपोज करो उसने दुखी किया और लाल दबा दिया, बैरियर खुल गया, वो चला गया। इस तरह से उस अफसर के खाते में लाल लाल डेली इकट्ठे हो रहे हैं। एंड दिस ऑल विल बी मैनेज्ड बाय टीसीएस, टाटा वाले करेंगे, इन्फोसिस वाले करेंगे, ये सरकार के लोगों के अंदर नहीं होगा, नहीं तो बदल देंगे रातों रात सर्वर को। तो इस तरह का एक सिस्टम बन जाए और फिर इनकी जो अप्रेजल है, ये सर्वर, इस ये जो डाटा बॉक्स बना है इसके माध्यम से हो, और सरकार का एक डिपार्टमेंट उनके एक्शन ले कि तुम्हारे अगेंस्ट में इतने लाल आ गए, क्यों भाई, क्या ज्यादा पैसे लेते हो क्या। एंड देन जो एक सपना होता था हिंदुस्तान का कि हमारे हिंदुस्तान में राम राज्य होगा, क्योंकि उसके पास लाल इतने आ गए, तो वो क्या करेगा, हाथ जोड़कर कि भाई यह हरा लगा दो, मेरा तो 7 साल से प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे अगेंस्ट में तो इंक्वायरी चल रही है। वो आपकी ठोड़ी पकड़ेगा, और जिस दिन आरटीओ किसी ट्रक ड्राइवर की ठोड़ी पकड़ के हाथ जोड़ता है तो सच में ही राम राज्य आ गया। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर उसने सोचा और नई चीज बन गई। तो आप हमेशा एक आउट ऑफ बॉक्स कोई नई चीज भी सोचोगे ना, तो वो भी आपका स्टार्टअप होगा। डजंट मीन ओनली बिजनेस व्यापार के लिए स्टार्टअप होगा, देयर आर मेनी थिंग्स टू बी स्टार्टअप। ये एक आइडिया था, मैंने उसको दिया एंड ही इज डूइंग इट। सो भाव आपका होना चाहिए कि प्रारंभिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम की प्रारंभ, उसके बाद यू कैन स्टार्ट इट। आई थिंक क्लियर। हेलो, यस सर। सर एक और बच्चे ने से क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू बी मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम, क्योंकि अभी पेंडेमिक का माहौल है सर, तो बच्चे जानना चाह रहे हैं आपके शब्दों के द्वारा कि भैया क्या है पेंडेमिक में मोटिवेटेड और पॉजिटिव कैसे रहे। देखो जी, कुछ चीजें ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं थी, क्योंकि फरवरी में आपको नहीं मालूम था पेंडेमिक होगा, लॉकडाउन होगा और क्या होगा। कुछ चीज होती है आपके हाथ में होती है, जो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आप रोड पे जा रहे हो कार के अंदर, और आगे से 10-5 कार पहले जाम में खड़ी है। आपने गर्दन निकाल कर देखा, किसी से पूछा क्या बोला जी वहां कोई कार एक्सीडेंट हो गई, जाम में खड़ी है, इसलिए जाम लग गया। तो आप भी 10 कार के पीछे खड़े हो गए। आप के बाजू से कोई मांगने वाला भी आपको आवाज खटखट दे रहा है, क्योंकि वहां कोई ना कोई आ जाता है। कोई स्कूटर वाला भी आपके कार के कहीं ना कहीं बाजू से टच करके आपसे पूछ रहा है, अरे क्यों जाम लग गया। तो आप वहां दो पर, एक तो आपके मनो की जो परिस्थिति होती है, इसको बोलते हैं परिस्थिति, वो जो आपके हाथ में नहीं है, जो एक्सीडेंट हो गया, जाम लग गया। एक होती है स्थिति, जो आपके दिमाग में, आपके हाथ में होती है। तो यहाँ पर 2 चीज है। एक तो आप जब भी कोई पता लगा आगे कोई एक्सीडेंट हो गया, जाम लग गया, आप कोस रहे हो, पता नहीं कौन था, किस लिए जाम लगा दिया, ये पता नहीं कैसा आजकल शहर है, मन में आए जाम लग जाता है। मांगने वाले ने मांगा, पता नहीं कहां से रोड पे आ जाते हैं मांगने वाले, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है, क्यों ये काम करके नहीं खाते। स्कूटर ने कार के टच कर दिया, इसको स्कूटर नहीं चलाना आता, कहां पगला है, गद्दे निकालकर आपको लड़ना शुरू कर देते हो। क्योंकि कुछ चीजें परिस्थिति थी, आपके हाथ में नहीं थी, हो गई। स्थिति तो आपके हाथ में है। आप अपने शीशे बंद करके मस्ती से म्यूजिक सुन सकते हो, मस्ती से दोस्त से बात कर सकते हो, लैपटॉप खोल के अपना काम कर सकते हो। आप अपनी स्थिति को अपना बेटर आप कर सकते हो। तो 2 लोगों की स्थिति है, एक तो वो जो झगड़ रहा है, झक मार रहा है, लोगों से पंगा ले रहा है, एक वो है स्थिति जो आपके हाथ में है। जो पेंडेमिक जो हो गया,
वो हमारे हाथ में नहीं है, परिस्थिति है। सरकार कर रही है, जनता कर रही है, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है, होम मिनिस्ट्री कर रही है। भूल जाओ, आप इसके टाइम पर अपनी स्थिति को देखो कि मेरे को क्या करना है, व्हाट कैन आई डू बेस्ट। और ये ऐसा गोल्डन चांस है अपनी स्थिति को ठीक करके आप उसको जोड़ो नहीं, क्योंकि आपका काम ही नहीं है। न पेंडेमिक को आप ठीक कर सकते हैं, न आपको सरकार का काम है, रूल रेगुलेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आप अपनी स्थिति के ऊपर काबू करके अपना काम करो और इस 2.5-3 महीने 4 महीने का फायदा उठाओ। हमने तो 3-4 महीने में ऐसे इनोवेशन किए हैं जो हम 21वीं सदी के अंदर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को बदल देंगे। दैट स्थिति पे काम किया है, न कि मनोस्थिति के ऊपर। तो मेरा तो ये कहना है, आप बहुत कुछ करोगे, बट थिंग इज दैट आप क्या हो रहा है, सरकार को क्या करना है उस पर चिंता मत करो, आपको क्या करना है उस पर सोचो आप। सही, एकदम सही फरमाया सर आपने, क्योंकि अगर आप थ्रेट, जो कमजोरी है, जो भी डिफिकल्टीज है, उसको अपॉर्चुनिटीज में अगर क्रिएट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई आपको आगे बढ़ने से किसी को भी नहीं रोक सकता। बस सर, और बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैं लास्ट एक और क्वेश्चन लूंगा सर, क्योंकि मुझे पता है सर आपका समय कितना, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। बस एक लास्ट लेकर वी विल वाइंड अप। सर, one question Rupali has asked, where did you get the idea of trucking cube? आपको जो ट्रकिंग क्यूब जो कंसेप्ट इनोवेशन अग्रवाल पैकेट्स में लॉन्च किया है, तो हाउ यू गॉट द आइडिया सर? रूपाली, मैंने कहा था कि आपका जो कस्टमर है, जब कभी कोई शिकायत लेके आपके दरवाजे पे आता है, तो हमारा 2 वे होता है कि ये सुबह सुबह आ गया, जैसे कोई दुकान कपड़े की करते हैं, कोई 2 दिन पहले कपड़ा लेकर आया था और सुबह सुबह खोलते ही आ जाता है, यार ये बदल दो, या पसंद नहीं आया, मेरे पैसे वापस कर दो। तो हम काफी बार वी डोंट वेलकम हिम, हम चिढ़ जाते हैं, कहते हैं यार ये समय क्या, बोने का टाइम क्यों आ गया। बट आई वेलकम हिम, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि मेरे दरवाजे पर जो शिकायत करता है वो मेरा ग्राहक है, ग्राहक मेरा भगवान है। भगवान कभी लेता नहीं, वो देता है, वो देने के लिए आता है, किसी भी टाइम पर आए। बट मेरी अपनी नजर है कि उसको मैं किस तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। तो जब मेरे ग्राहक के ऊपर तकलीफ थी कि ये मेरा मटेरियल 4 दिन 5 दिन 6 दिन हाल्ट हो गया और मेरे को 30,000 देने पड़े, तो उसके ऊपर हमने चर्चा की कि 30,000 किसी ग्राहक को आगे से देने ना पड़े, क्योंकि ट्रक हाल्ट होगा तो ये तो कॉस्ट है, हमारे को भी देने पड़ेंगे। और ट्रक हाल्ट ना हो, केवल उसके ऊपर की बॉडी हाल्ट हो, दैट इज कंटेनर पोर्टेबल, वो हो, तो उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, नामात्र है। तो उस क्लाइंट की उस कंप्लेन ने आइडिया बना दिया, हमारा कोई आइडिया नहीं था, क्लाइंट हैज मेड अस आइडिया। अब उसके बाद इस ट्रकिंग क्यूब ने हमारी इंडस्ट्री को बदल दिया। इससे हमने 50 और इनोवेशन एक के साथ जोड़ते गए। आपने कभी सुना होगा कि मैगी एक बार पुणे से चली थी, कानपुर पहुंची थी, और उसके बाद किसी ने खा लिया, उसके उल्टी दस्त लग गई, अल्टीमेटली वो केस हो गया और हजारों करोड़ की मैगी वालों को पूरी जगह से, हिंदुस्तान से फेंकना पड़ा था। हम कहते हैं कि मैगी उस टाइम पर बदनाम हो गई थी एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम अगेन। मगर जब इन्वेस्टिगेशन किया कि जो मैगी ने पहले जो बनाया था उसी फार्मूले से उसने बाद में बनाया, तो हुआ क्या, फिर क्या उनसे गलती हो गई थी। तो हमने इस क्यूब के इनोवेशन के बाद जोड़ा कि इसके अंदर कभी लॉजिस्टिक का कोई रोल तो नहीं है। अल्टीमेटली वी फाउंड, जब मैगी का एक पूरा ट्रक होता है, भर के लेके जाते हैं, तो वो मैगी वाले ताला चाबी मार के भेजते हैं कानपुर पुणे से। कई बार उनका आधा ट्रक होता है, तो ट्रक वाला आधा ट्रक होने के नाते से दूसरा सामान अपना रास्ते में डाल लेता है। जब मैगी भरी और उसने देखा कि आधा ट्रक खाली है, तो उसने उसमें साबुन डाल ली और आधे ट्रक और साबुन को भर के वो कानपुर लेके गया, कानपुर में खाली किया। खाली के बाद डिलीवरी हुआ, फिर वो डिटेल पे पूछा, अल्टीमेटली कंज्यूमर के पूछा, कंज्यूमर ने खाया और उसका लूज मोशन हो गया, अल्टीमेटली ही फेल्ट सिक और कंप्लेन हुई। बाद में क्या हुआ आप सबको मालूम है। जिस तरह से कि आप अपने किसी किराना शॉप में गए, एक पोली बैग लिया, उसमें 2 साबुन की टिकिया ली, डिटर्जेंट पाउडर लिया और उसमें बिस्किट ले लिया आपने और अपने घर पे आकर डाइनिंग टेबल पे रख दिए, एंड टुमारो मॉर्निंग नेक्स्ट डे if you want to eat it, I don't think you can eat it, because साबुन और बिस्किट दो संपर्क में आ गए। और आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, यू नो बेटर कि इस फिनोमिना को बोलते हैं कि रेनसिडिटी फिनोमिना। रेनसिडिटी फिनोमिना ऐसा होता है कि कोई भी चीज ऐसी संपर्क में आ जाती है, डिटर्जेंट, अगरबत्ती, टायर, ऐसे 32-33 आइटम है, वो आइटम एक्सपायर मच बिफोर एक्सपायरी।
एक्सपायरी डेट होगी दिसंबर 2020, बट इट हैज बीन एक्सपायर्ड विद इन 48 आवर्स, क्योंकि ये संपर्क में आने के बाद चीजें एक्सपायर हो जाती है, वायरस लग जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता। इसी तरह जब साबुन के साथ मैगी पहुंची, वो भी 48 घंटे के अंदर एक्सपायर हो चुकी थी, वो 60 घंटे में पहुंची थी, एंड इट वाज बीइंग कंज्यूम्ड लेटर ऑन। स्मेल तो उड़ गई मगर वो एक्सपायर हो चुकी थी, और इस तरह से वो हो गया। तो आज हम वही ट्रकिंग क्यूब एक ट्रक में 2 डालकर, आधे में तो भरते हैं साबुन, आधे में भरते हैं मैगी और बिस्किट और फार्मा, या 3 आइटम होते हैं। तो किसी में बिस्किट, किसी में फार्मा, किसी में कपड़े, किसी में साइकिल के पार्ट्स, किसी में ऑटो पार्ट्स। तो हम एक सामान के साथ एक क्यूब देते हैं, मिक्सअप नहीं करते, बिल्कुल डिफरेंट। तो ये एक नया कंसेप्ट इंडिया में लॉन्च किया है कि अब आने वाले टाइम में इस टाइप का मिक्सअप होने से यू विल सरप्राइज टू नो दैट देयर इज 42,000 करोड़ एनुअली लॉस होता है हमारे हिंदुस्तान में जीडीपी, अपने ट्रांसपोर्टेशन के रेवेन्यू का, गुड्स का 42,000 करोड़ बिकॉज ऑफ दिस मिक्सअप हैंडलिंग। सो हम यदि ये क्यूब 1 लाख लेकर आ गए, द डे विल कम विद 1 लाख क्यूब्स, तो ये 42,000 करोड़ को कम करके हम 20-22,000 करोड़ में ले आएंगे, 10-12,000 करोड़ का फायदा होगा। फिर हम 5 लाख ले आएंगे तो दिस 42,000 करोड़ विल बी जीरो, द डे विल कम। तो कौन वो आइडिया चलते चलते, अब तो चल ही रहा है, वो पता नहीं कितनी जगह और फायदा करेगा। तो दिस ऑल थिंग्स कम्स ऑटोमेटिकली, केवल आपकी सोच, ग्राहक के प्रति सोचोगे, ग्राहक की सुनोगे, आइडिया जनरेट होगा, रास्ता मिलेगा, और फिर मल्टीपल कितनी जगह बेनिफिट होगा आपको खुद को नहीं मालूम। दिस इज अ स्टोरी फॉर ट्रकिंग क्यूब। वेरी नाइस, इट इज रियली अ वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी, और हमें भी पता चला कि इनोवेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और दैट इज अ रियली अ गुड एग्जांपल जो आपके द्वारा दिया गया मैगी के बारे में। और इसी के साथ आई थिंक अभी हम अंतिम पड़ाव पर हैं, और मैं डायरेक्टर सर को फाइनल वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करूं। उससे पहले मैं सबसे पहले जेएस आलूवालिया सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही मुझे सर से कंफर्मेशन मिला, अग्रवाल सर से, सर मतलब ही विल बी अवेलेबल टू गिव अ एक्सपर्ट वेबिनार, उसी समय आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम आलूवालिया सर एंड ही हैज टोल्ड आई विल कोऑर्डिनेट ईच एंड एवरी एक्टिविटी। और उनके बाद से हम रेगुलर टच में हैं, हर एक चीज प्रॉपर्ली मॉनिटर हो रही थी, और रेगुलरली वी वर इन द कोऑर्डिनेशन कि भैया कैसे होगा। सो एट लास्ट टुडे वी रीच एट दैट डेस्टिनेशन, और ये आज प्रोग्राम हुआ है। और ये पॉजिटिविटी कहिए आप इस कोविड-19 की या फिर कोरोना की, कि आज लेजेंडरी रमेश अग्रवाल सर को हम सुन पा रहे हैं अपने घर पे बैठे हुए, अपने लोकेशन पे बैठे हुए, और सर दिल्ली में है, और आज हम सर को सुन पा रहे हैं उसी फ्लो में जैसा हमने 5 साल 5.5 साल पहले सर जब उदयपुर पधारे थे हमने सर को सुना था। तो ये एक ड्रास्टिक डिजिटलाइज्ड चेंज वी कैन सी इन द एनवायरनमेंट, और आई थिंक इट विल गो लॉन्ग, और काफी सारी इससे नई पॉजिटिविटी आएगी। और इसी के साथ नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर to give away the final vote of thanks, and to give thanks behalf of whole Gitanjali family to Agrawal sir and the team. Thank you Arvind. Thank you sir. सबसे पहले तो मैं रेस्पेक्टेड रमेश अग्रवाल सर का तहे दिल से शुक्रिया और हाथ जोड़ के धन्यवाद सर मैं अदा करना चाहता हूं कि पिछले, अगर मैं ये बात करूं कि पिछले 1.5 घंटे हम सभी गीतांजलि परिवार के जितने हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, जिन्होंने आपकी इस पूरी जर्नी को, इस पूरी यात्रा को जो सुना, ये वास्तव में एक बहुत ही रोमांचक और रोंगटे खड़े करने वाला, एक प्रेरणादायी हम लोगों के लिए अवसर रहा, जहाँ पे कि हमको आपकी जीवन की पूरी एक जो आपने अपनी जर्नी को शेयर किया, एयरफोर्स की जर्नी से लेके कैसे इस कंपनी का गठन हुआ, किस तरीके से थॉट प्रोसेस आए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है हम सभी लोगों के लिए, कि जहाँ पे कि अगर दृढ़ निश्चय हो और निष्काम भाव से जो त्याग आपने एयरफोर्स में किया, आपने वॉर विडोज के लिए किया, वो एक शायद मुझे गीता का वो भी अध्याय याद आ गया कि जहाँ पे आप अपना अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। तो आपने एक बहुत ही अभिनव त्याग किया, वो आपके ही एयरफोर्स के सहयोगियों द्वारा उसको कितने पॉजिटिव तरीके से लिया गया, किस तरीके से आपने अपनी जर्नी को
लॉजिस्टिक की जर्नी को 2 ट्रक्स के साथ स्टार्ट किया आपने, किस तरीके से अपने पिताजी के द्वारा बताई गई अनमोल बातों को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। और सबसे बड़ी एक जो मैं एज ए पर्सन मुझे एक सीख मिली आज कि हम हमेशा सजग रहें, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जो हमको इनपुट मिल रहा है, जो हमको फीडबैक मिल रहा है, उसको एक बहुत ही सकारात्मक रूप से लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर का हमको एक रियल वास्तविक जो हमको फीडबैक मिलना है वो धरातल से मिलना है। और किस तरीके से आपने उन फीडबैक्स को, उन सुझावों को, उन कठिनाइयों को अपॉर्चुनिटीज में बदला, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी सीख है, बहुत प्रेरणादायक हम लोगों के लिए आपके जीवन के इस वृतांत के इस अनुभव को सुन के मिला। मुझे अपने पिताजी की भी कही हुई एक बात याद आई कि मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते हैं कि जब सर मेरे पिताजी 2004 में रिटायर हुए कि मेरे पास आज की डेट में 34 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव है, अगर तुम मेरी बातों को सुनोगे। जब मैं 95 में मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर को सर स्टार्ट किया तो मुझे मेरे फादर ने कहा कि अगर तुम मेरे उस वक्त के 25 साल के अनुभवों को सुनोगे तो फ्रॉम डे 1 सितंबर 95 में यू विल बी रिचर बाय 25 ईयर्स। तो ये एक बहुत बड़ी सीख आपसे मिली कि आपके अनुभवों को जो हम सभी लोग, खास करके स्टूडेंट्स, हम सभी फैकल्टीज, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, आप जैसे बिजनेस के एक्सपर्ट, बिजनेस के एक आप अपने आप में लेजेंड हैं, आपको सुनना हम सभी लोगों के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, एक बहुत बड़ा गौरव की बात है कि आज हमने आपको सुना। और ये शायद इस पेंडेमिक टाइम की सबसे बड़ी हम लोगों को एक गिफ्ट मिली है, सौगात मिली है, जहाँ पे कि आपके द्वारा हम मोटिवेट हुए हैं। वी ऑल आर चार्ज्ड। स्टूडेंट्स का भी मैं रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में देख रहा था, स्टूडेंट्स को आज एक बहुत बड़ी दिशा मिली। जो आपने बात कही कि कैसे कठिन अवसरों में चुनौतियों को अवसर में बदलना है, किस तरीके से आप डिफरेंट, आपने ट्रक ड्राइवर की स्टोरी को शेयर किया, किस तरीके से कॉन्सेप्ट आया, निद्रा दान का कॉन्सेप्ट हुआ, क्यूब्स के का इनोवेशन हुआ। तो पूरी एक ट्रांसपोर्टेशन या एक सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री को आपके नेतृत्व में आपकी पूरी टीम ने जिस तरीके से रेवोल्यूशनाइज किया, हम सभी उसके लिए बहुत आभारी हैं। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इतना लंबा समय दिया। वी आर अवेयर कि बीइंग अ चेयरमैन 1000 करोड़ से ऊपर के वर्टिकल को हैंडल करना, 2.5 से 3 घंटे, 2.5 घंटे तक आपको हम लोगों ने इंगेज करके रखा। वी आर वेरी थैंकफुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का, आलूवालिया साहब का, उनके साथ पूरी सपोर्ट टीम का, जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते से इसको एक सीमलेसली एग्जीक्यूट करने में हम लोगों का सहयोग किया। आपके सर बहुत बहुत हम आभारी हैं तहे दिल से। गीतांजलि परिवार की तरफ से, गीतांजलि मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल्दो हम आपको फिजिकली नहीं पा सके आज, लेकिन एक तरीके से इस डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी लगभग हमको वो फिजिकल जैसा ही हमको वो सुख दिया। बट यस, जो स्वाभाविक तौर पे जो 5.5 साल पहले हमको मिला था उसमें आपको रूबरू सुनने का ऑलमोस्ट उस जैसा हम लोगों को दोबारा फिर से रिचेरिश करने का एक्सपीरियंस हुआ। आपका आशीर्वाद हम सभी लोगों के साथ बना रहेगा, ऐसा सर मुझे पूरा यकीन है। और गीतांजलि परिवार की तरफ से आपसे ये अपेक्षा है कि आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद पूरे परिवार को, हमारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को सदा मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत प्रेरणादायक आपका उद्बोधन रहा। इसने हम लोगों को इस संक्रमण काल में एक नई सीख दी कि कठिनाइयां आती हैं, लेकिन पराक्रमी वही है जो उन कठिनाइयों को अवसर में बदलता है। वीर भोगस्य वसुंधरा, उसके आप एक जीवंत उदाहरण हैं कि कैसे कठिनाइयों को, संघर्षों को सफलता के सोपान में बदला जा सकता है। उसको देखने के लिए आपसे बेहतर हम लोगों के पास कोई उदाहरण नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू अरविंद। थैंक यू सर, आपका भी मोटिवेशनल वोट ऑफ थैंक्स हमारे लिए प्रेरणादायी है सर। और अंत में पुनः मेरी बात का मान रखने के लिए सर अग्रवाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे एक बार के कहने पर कि सर आप समय निकाला थोड़ा हमारे लिए और आपने उस बात को माना सर, ये बहुत ही बड़ी बात है, स्पेशली मेरे लिए तो, और इंस्टीट्यूट और पूरे ग्रुप के लिए तो। आप पिछली बार जब आप पधारे थे जेपी साहब से आपका मिलना हुआ था,
तो उनसे भी जब हमारी बात होती है, जब भी हम उनसे मिलते हैं, तो उस बात को वो हमेशा याद रखते हैं। और वो आपका जो विजिट था वो हमारे लिए एक यादें लिए हुए हैं। तो फ्यूचर में हम पुनः अपेक्षा करेंगे कि कभी आप समय निकालें उदयपुर, जब भी आप पधारना चाहें तो हम उसके लिए ऋणी रहेंगे सर। और अंत में पुनः आपका धन्यवाद, आलूवालिया सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रोग्राम को सीमलेसली ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमारी टीम, चिंतल पटेल सर जो टेक्निकल पूरा हैंडल कर रहे थे, उनका भी स्पेशल थैंक्स। ही इज ऑलवेज विद अस इन ईच एंड एवरी टास्क रिलेटेड विद द टेक्निकल पार्ट इन आवर इंस्टीट्यूट। सर थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।